اس کی آنکھ صبح الارم سے کھلی تھی۔ الارم بند کرتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ پہلی نظر اس نے اپنے برابر والی سائڈ پہ ڈالی تھی جو خالی تھی۔ ٹائم دیکھنے کے بعد اسے یاد آیا تھا کہ رات اس نے کیا کر دیا تھا۔ ایک دم وہ چپل پہن کر کھڑا ہوا تھا اور بھاگنے کے انداز میں بالکنی کی طرف بھاگا تھا۔ دروازہ کھول کے باہر گیا تھا اور ماریا کو دیکھا تھا جو کارنر پہ دیوار سے چپکی سکڑی ہوئی ٹھنڈے فرش پہ لیٹی ہوئی تھی۔ برہان نیچے بیٹھا تھا اور اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پہ اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ رات کو تھپڑ نہ جانے وہ کیسے مار چکا تھا۔ اسے خود پہ بہت غصہ آیا تھا۔ لال نشان کے علاوہ چہرے پہ رونے کے نشان بھی موجود تھے۔ اس کے اریاں، بال اور بازو اور گردن سب سرخ ہو رہے تھے۔ ایک دم اس نے اسے آگے بڑھ کر چھپ کے گود میں اٹھایا تھا اور کمرے کے اندر آ کر بیڈ پہ ڈالا تھا۔ اس کی نبض ٹٹولنے کے بعد محسوس ہوا تھا کہ نبض کافی مدھم ہے جبکہ وہ کپ کپا بھی رہی تھی۔ کمبل سے اس کو اچھی طرح کور کرنے کے بعد روم کا ہیٹر آن کیا تھا اور بیڈ پہ بیٹھ کے سوچنے لگا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ ماریا، ماریا، وہ واپس اس کی طرف آ کر اب اس کا چہرہ پریشانی سے تھپتھپا رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ غنودگی سے باہر آئی تھی۔ وہ مشکل اس سے آنکھیں کھولی تھی۔ اٹھو۔ برہان کو سامنے دیکھ کر وہ اچھی خاصی گھبرا سی گئی تھی اور اس کے کہنے پہ درد کو بھلا کر وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ رات والا قصہ وہ بالکل نہ بھولی تھی۔ کپڑے چینج کرو اور ناشتے پہ آؤ۔ جب وہ اٹھ گئی تو ساری ہمدردانہ طبیعت برہان بھلا چکا تھا۔ حکم دے کر وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم چلا گیا تھا جبکہ ماریا اس کو دیکھے گئی تھی۔ اپنی قسمت پہ اس سے رونا آنے لگا تھا۔ بابا یہ دیکھیں، یہ صحیح ہے؟ وہ انڈے کی پلیٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہ تیسرا انڈا تھا جو وہ بنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ انڈے کو دیکھتے وہ بولے تھے۔ انہوں نے اسے ہاف فرائی انڈا بنانا سکھایا تھا جبکہ وہ ہاف کے بجائے پورا فرائی کر کے لے آتی تھی جو وہ بالکل بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ انڈا اسے تیسری ٹرائی میں صحیح بنایا تھا۔ بابا آپ بھی نا، مجھ سے تو یہ انڈا ہی نہیں ٹوٹتا ہے۔ وہ ناراض ہوتی اپنی کرسی پہ بیٹھی تھی اور جگ سے گلاس میں اورنج جوس نکالا تھا۔ انڈا نہیں ٹوٹتا تو اپنے گھر کیا کرو گی؟ وہ پریشان نظروں سے دیکھتے بولے تھے کیونکہ وہ کھانا بالکل بھی نہ بنا پاتی تھی۔ کوکنگ میں بالکل زیرو تھی۔ بھائی بابا، یہ کھانا وانا مجھ سے نہیں بنے گا، میں بتا رہی ہوں۔ آپ کو ایسا لڑکا دیکھنا ہوگا جو کھانا بنا کے مجھے کھلا سکے اور خود بھی کھا سکے۔ وہ جوس پیتی بولی تھی۔ مطلب اب تم جاب کرو گی اور وہ گھر سنبھالے گا، یہی کہہ رہی ہو نا؟ وہ حیرت سے بولے تھے۔ ہاں، بزنس پڑھ رہی ہوں، بزنس ہی کروں گی نا۔ آپ کافی سمجھدار ہیں، سامیہ خوش ہوتی بولی تھی۔ مطلب حد ہوتی ہے میری بیٹی، اب اتنی ناسمجھ ہے کہ وہ جاب کرے گی۔ تمہیں پڑھانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر خوار ہوتی پھرو گی۔ عورت گھر سے باہر جب نکلتی ہے جب کوئی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ میں نیرو مائنڈڈ نہیں ہوں لیکن یہی ہمارا دین کہتا ہے۔ وہ اس کو نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کیونکہ جاب 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 کرتی رہتی تھی وہ ہر وقت۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے برا سا لگا تھا۔ یہی کہ نیکسٹ ویک ایک فیملی کو انوائٹ کیا ہے، تمہیں دیکھنے آئیں گے وہ لوگ۔ مائنڈ کو سیٹ کر لو بیٹا، وہ نوالا منہ میں رکھتے سنجیدہ سے بولے تھے۔ سامیہ کو اپنے بابا ابھی کافی پرائس لگے تھے۔ بابا کو کیا جلدی ہے اتنی؟ ابھی تو میرا 3rd سیمسٹر ہی ہے۔ یونیورسٹی میں بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ مجھے تو اب تک کسی ڈھنگ کے بندے نے پروپوز نہیں کیا ورنہ اس کا بہانہ بنا کے ہی رہائی مل جاتی۔ ابراہیم صاحب کی صبح کی گئی بات پہ وہ مستقل سوچ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی ہی صحیح اسے خود کو تیار کرنا تھا۔ کل رات کے بعد اس کا دل بہت سا گیا تھا۔ برہان کے آفس سے جانے کے بعد وہ کمرے سے باہر تک نہ نکلی تھی بلکہ نائٹ سوٹ میں ہی بیڈ پہ لیٹی رہی تھی۔ آرزو بیگم کمرے میں اسے دیکھنے آئی تھی، پھر اسے بخار میں پھنکتا دیکھ کے ٹینشن میں برہان کو کال کی تھی کہ وہ اسے ڈاکٹر کے لے جائے، لیکن برہان صاحب گوئی سے انہیں منع کر چکا تھا۔ آرزو بیگم کو برہان کا یہ رویہ ماریا کے لیے ٹھیک نہ لگا تھا۔ خود ہی ڈاکٹر کو کال کر کے اسے میڈیسن کھلا گئی تھی۔ بہت انسسٹ کرنے پہ بھی اسے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح 5 بجے آفس سے لوٹ آتا تھا لیکن اب اسے سوچ لیا تھا کہ 9 یا 8 بجے سے پہلے نہیں آئے گا، تبھی وہ شادی کے بعد آج 8 بجے کے بعد گھر آیا تھا۔ یہ کیا وقت ہے گھر آنے کا برہان؟ آرزو بیگم ہارن کی آواز سن کے کچن سے باہر آئی تھی۔ ان کے لہجے میں نرمی کے بجائے شدید غصہ تھا۔ موم، آفس میں کام بہت تھا، چاہتے ہوئے بھی اب جلدی نہیں آ سکتا۔ سیاہ کوٹ کے پینٹ بٹن کھولتا وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔ تمہیں کتنی کالز کی کہ تم آ جاؤ لیکن تمہیں کہاں دھیان ہے اپنی بیوی یا ذمہ داری کا؟ موم، میں آپ کو بتا چکا تھا کہ نہیں آ سکتا۔ آفس بیگ اٹھا کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مزید لیکچر سننے کی اس میں سکت نہ تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تھا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوئچ بورڈ سے سوئچ آن کرنے کے بعد اسے لائٹ جلائی تھی۔ بیگ صوفے پہ رکھتا وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ بیڈ پہ وہ ایک نظر ڈال چکا تھا، جھک کے شوز اتارے تھے، کوٹ اتار کے سائڈ پہ رکھا تھا۔ اب وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ہوا بیڈ کی طرف گیا تھا۔
कंबल को गर्दन तक लिए वो हाथ पेट पे रखे बेसुध सी सो रही थी। एक हाथ बढ़ा के उसने उसके माथे को छुआ था और फिर एकदम पीछे किया था। ओह माय गॉड! बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था तब वो बेड पे उसके पास बैठ के कंबल हटाने लगा था। हाथ पकड़ के उसकी नब्ज टिटोली थी जो हद से ज्यादा स्लो डाउन थी, जबकि सांसें भी मध्यम सी चल रही थी। वो असल मानों में परेशान सा हुआ था। दोबारा कंबल ढक के पैंट की जेब से मोबाइल निकाल के डॉक्टर को उसने खुद से कॉल की थी। बेड पे बैठी वो सोचों में ही गुम थी जब उसे ज़ामिन के आने का मालूम हुआ था। वो जैसे ही उसके बराबर में आकर दराज़ हुआ था, वो सोचों से निकल चुकी थी। सुबह ज़ामिन कराची के लिए रवाना होने लगा था। ज़ामिन को लगा शायद वो उसी के बारे में हद से ज़्यादा पॉसेसिव हो रही है या उसी बारे में सोच रही है। खुद नहीं आऊँगा तो तुम्हें बुला लूँगा, डोंट यू वरी। उसका हाथ थामता वो बोला था, इट्स ओके, मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी जो मर्ज़ी करें। गले में फँसते हुए आँसुओं को उसने अंदर धकेला था और आँखें झपकी थीं। कब से वो खुद पे ज़ब्त किए बैठी थी। रूड हो रही हो अब तुम। वो चाहता था उसे हंसता छोड़ता जाए। आई एम फाइन। अपना हाथ नरमी से उसके हाथ से निकालती बोली थी। नजरें सामने दीवार पे अटकी हुई थी। मूड तो ना खराब करो आज की रात, फिर कल से तुमने अकेले ही रात गुजारनी है। कम ऑन बेबी। एक हाथ के बजाय अब वो उसके दोनों हाथ पकड़ता उसे खुद की तरफ झुका के बोला था। एक तो मैं इस कदर परेशान हूँ और आपको हर वक्त अपने मूड की अपनी ख्वाहिश की लगी रहती है। बिना डरे वो परेशानी के आलम में खुद को एक बार फिर छुड़वाती बोली थी। यार मतलब समझ नहीं आती, मेरे होते हुए क्यों परेशान होती हो? क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ तुम्हारी सोच पे काबिज़ होने के लिए, जो फ़ज़ूल सी परेशानियों को सोच-सोच के खुद को हलकान करती रहती हो? वो लेटे से अब उठ बैठा था और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम के बोला था। हयाम की पलकें झुकी थीं जबकि लब मुस्कुराए थे। उसके चेहरे पे लम्हे में गुलाब से खिले थे। मैं परेशान इसलिए थी कि अब इस तरह मुझसे बातें कौन करेगा? वो मुस्कुराते हुए बोली थी। पहली दफ़ा उसकी आंखों में शरारत सी झलक रही थी। जामिन के चेहरे पे जानदार मुस्कुराहट ने जगह ली थी। इट्स ऑल ओके, मेरे लिए परेशान होना तुम पे फ़र्ज़ है। वो हँसा था जबकि हयाम मुँह खोले उसे देख रही थी। ये तो चीटिंग है, वो हैरत की ज़्यादती से आंखें फैलाती घूरती हुई बोली थी। और फिर ये क्या है कि जो तुम वक़्त ज़ाया पे ज़ाया किए जा रही हो? वो भवें उचका के उसके दोनों बाजू पकड़ता हिसार में लेते हुए बोला था। का क्या मतलब है? मैंने कौन-सा वक़्त ज़ाया किया है आपका? घबराती हुई, लजाती हुई बोली थी। लम्हे में ही वो खज्जल सी हो गई थी। बीवी, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी बातों पे मत चढ़ाया करो। कभी अपनी मोहब्बत का इज़हार अमली तौर पे भी करके दिखाया दिखाया करो। उससे अलग होता ठोड़ी से उसका चेहरा ऊपर करके वो मसनूई खफगी से बोला था, जबकि हयाम की घनी पलकें रुखसार पे सायाकुन हुई थीं। क्या चाहते हैं आप? वो हार मानते हुए बोली थी। मालूम था वो बहुत ज़िद्दी है, अपनी बात पे अमल कराना अच्छी तरह जानता है। यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ मोहब्बत से भरे निशान चाहता हूँ। जब हयाम ने ऊपर नज़रें की तो ज़ामिन भरपूर संजीदगी से पहले आँखों, फिर दोनों गालों, फिर अपने सीने पे, उसके बाद वो अपने लबों पे उँगली रखता सीरियस से लहजे में बोला था, जिसका मतलब ये था कि वो रियायत के मूड में बिल्कुल नहीं था। हयाम को एकदम सांप-सा सूंघ गया था। चेहरे का रंग फ़क हुआ था, वो सोचते ही बेहोश होने वाली थी। चलो शुरू हो जाओ, फिर मुझे भी शुरू होना है। अब भी उसके लहजे में बिल्कुल संजीदगी थी। बड़ी मुश्किल से वो हयाम के चेहरे के रंगों को देखने के बाद अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त कर पाया था। न नहीं नहीं, वो सरनफ़ी में हिलाती घबराहट से बोली थी। उसके हाथ और पाँव शदीद ठंडे होने लगे थे, जबकि चेहरे पे पसीने की बूंदें सर्दी में भी चमक उठी थीं। व्हाट? फिर से बोलो नहीं। ज़ामिन को का उसको नहीं ना कहना बुरा नहीं लगा था। वो इतना तो जान गया था कि वो काफ़ी रिज़र्व सी शर्मीली लड़की थी। आजकल की लड़कियों की तरह उसमें ज़रा-सी भी बोल्डनेस ना थी, बिल्कुल साफ, शफ़ाफ और मासूम सी थी। लेकिन किसी तरह उसे ज़िद करने का मौका भी वो हाथ से जाने नहीं देता था और अब भी यही हुआ था। ज़ामिन ने उसकी कमर में हाथ डाल के अपने करीब मुकाबिल किया था कि वो जो पहले से घबराई हुई थी, मज़ीद घबरा सी गई थी। अब भी वो उसकी कुर्बत से ऐसे ही परेशान होती थी, जैसे पहले होती थी। चलो मेरा बच्चा, मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मेरी बीवी खुद मेरे पास आकर कहेगी, सुनो जी, आज मूड में हूँ। वो सारी तमीज़ की हदें पार करता हुआ बोला था। ज़ामिन, वो रोहानसी सी हुई थी, किसी तरह उसकी गिरफ्त से निकलकर इस मंज़र से गायब होना चाहती थी। वाट ज़ामिन, तुम मुझे इनकार कर रही हो? इनकार की सज़ा तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बुरी होगी। तुम्हें यहाँ से ही बाहर रूम में से निकाल दूँगा या इस खिड़की से नीचे लॉन में पटक दूँगा या तुम्हारा हाथ पकड़ के छत पे इस कँपकँपा देने वाली ठंड में छोड़ आऊँगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो अब की बार तेज़ी से बोला था। हयाम उसका गुस्सा अच्छी तरह महसूस कर चुकी थी और उसकी सज़ाएँ सुन के तो वो वाक़ई में कँपकँपा गई थी। आँखों में नमी लिए उसने ज़ामिन की तरफ इल्तिजाई नज़रों से देखा था।
बमुश्किल उसकी आंखों पे अपना नाजुक मुलायम सर्दी से पड़ता ठंडा हाथ रखते हुए वो अपना चेहरा मजीद जामिन के चेहरे के करीब लेकर गई थी और हल्की शेव से भरे उसके गालों पे धीरे से अपने नाजुक गुदास गुलाबी लब रखे थे। इसी तरह उसने उसके दूसरे गाल पे भी किस की थी। अब उसने अपने हाथ जामिन की आंखों से हटाए थे। वो दूर होना चाहती थी लेकिन हो नहीं पाई थी क्योंकि अब तक वो जामिन की सख्त गिरफ्त में थी। जामिन ने आंखें वाह करके उसके चेहरे को देखा था जहां उसकी आंखें झुकी हुई थी। मज़ा नहीं आया और अभी सिर्फ़ तुमने यहाँ ही किस की है। वो उसको बगौर देखता बोला था और तब हयाम ने उलझी नज़रों से उसे देखा था। क क्या मतलब है? उस पे मज़ीद घबराहट तारी हुई थी। मतलब कि दोबारा ट्राई करो बेबी, वो बहुत नॉर्मल अंदाज़ में बोला था, लेकिन हयाम को अंदर तक तपा गया था। हयाम को पहली बार उस पे गुस्सा आया था, उसको टॉर्चर करने के अलावा जैसे उसके पास कोई काम ही नहीं था। वो एकदम गुस्से से उसके हाथ कमर से हटाती बेड पे खड़ी हो गई थी और फिर बेड से नीचे उतर गई थी। मैं खुद छत पे चली जाती हूँ अपनी सज़ा भुगतने क्योंकि मुझे ये मज़े देने नहीं आते। आपको खुशी, सुकून और राहत मिलती है मुझे टॉर्चर करके, जा रही हूँ मैं। वो तेज़ आवाज़ में कहती तो 2 पट्टी की चप्पल पाँव में उड़स्ती बोली थी और गुस्से से कह के मुड़ गई थी। ज़ामिन का उसकी बात सुन के ज़ोरदार काबू पाने के बावजूद भी कमरे में गूंजा था। हयाम ने मुड़ के भी कोई झुरझुरी नहीं दी थी। वो रुकना ही नहीं चाहती थी यहाँ। इससे पहले वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती, ज़ामिन ने उसे आड़े हाथों लिया था। एट लीस्ट मुझे शुरू होने दो, उसको बाजुओं में भरता वो आंख दबा के शरारत से बोला था, जबकि हयाम का चेहरा मजीद सुर्ख सा हो गया था। तुम मुझे मजे नहीं दे सकती लेकिन मैं तो दे सकता हूँ। वो अब उसको बेड पे लिटाता उसके कान पे झुक के सरगोशी करता बोला था। हयाम के बदन में कपकपी स्टार्ट हो गई थी। कितना बेबाक था वो। जामिन ने महसूस होकर मजे से उसके चेहरे पे बिखरे रंग देखे थे। ऐसा महसूस हुआ था कि सारे जिस्म का खून उसके चेहरे पे आ बिखरा हो। आर यू इंटरेस्टेड ना? वो उसे मज़ीद ज़िज्ज करते हुए बोला था। हयाम ने अब उसे अपनी आँखें दिखाई थीं। हर बार वो इसी तरह उसकी मर्ज़ी ज़रूर जानता था, ना चाहते हुए भी वो इतना उसके बारे में सेंसिटिव सा हो गया था कि उसको ज़रा-सी तकलीफ़ देने के बिल्कुल भी हक़ में ना था। नहीं, वो गुस्से से बोली थी। बट मैं तो हूँ इंटरेस्टेड। वो मुस्कुराता हुआ उसके साथ लेट गया था और कंबल अपने और उसके ऊपर पूरी तरह ढाँप लिया था। दूसरे दिन वो एक बार फिर उसी जगह, उसी मकाम पे था, लेकिन इस बार वो अकेला बिल्कुल ना आया था, अपनी पूरी टीम को अपने साथ लाया था। काफ़ी खुफियाना तरीके से ये बार क्लब उसने अपनी हिरासत में लिया था और अब वो सुकून से उसी क्लब की मैनेजर की सीट पे बैठा, मुस्कुराता हुआ, टाँग पे टाँग जमाए सामने देख रहा था, जहाँ कल वाली लड़की जो उसे ऑफ़र कर रही थी, उसके सामने थी। डार्लिंग कम हियर, इतनी दूर क्यों बैठी हो? वो सबको अरेस्ट करवा चुका था। पूरे क्लब में जितने कपल्स या नौजवान पार्टी थी, वो सब उसकी हिरासत में थी। जबकि इस क्लब के मैनेजर वर्कर्स को वो अपनी टीम के साथ भेज चुका था। मुख्तसर ये कि अब इस क्लब में वो लड़की और सिर्फ वो खुद था। मैं यहीं ठीक हूँ, वो रिसानियत से बोली थी। अंदर ही अंदर वो उससे खौफज़दा हो रही थी। कल तो तुम्हारी ये हसीन सुर्ख लब, ये क़यामत जैसा सरापा, ये खुशबू जैसा बदन सिर्फ़ मेरा था। अब वहाँ बैठ के क्यों मुझे तरसा रही हो? दारिम चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट सजाए उसे सर तपा देखता बोला था। क्या काम है ये बताओ? वो दो-बदो बोली थी। काम तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हें एक शर्त पे छोड़ सकता हूँ। अब वो कुर्सी से खड़ा होता हुआ धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। क क्या शर्त? वो घबराई थी। शर्त बाद में, फिलहाल तुम मेरे साथ चलो रूम में। डार्लिंग कल का वादा याद है ना? उसका हाथ थामता वो उसे उठाता बोला था और उसे लेकर क्लब से बाहर चला गया था। सुबह उठते साथ ही वो बात लेकर किचन में आ गई थी। ये पहली दफ़ा था शायद कि वो किचन में कुछ बनाने की गर्ज से आई थी। चाहती थी कि कुछ स्पेशल अपने हाथों से बनाए। अब तक उसे ज़ामिन के लिए कुछ ना किया था या उसे मौका ही ना मिला था और ना ही ज़ामिन उसे कुछ करने देता था। वो खुद भी कमरे में बैठ-बैठ कर बोर सी हो चुकी थी। ज़ामिन आज जा रहा था। किचन में खड़ी वो सोच रही थी कि क्या बनाए। तब तानिया बेगम किचन में दाखिल हुई थी। कुक नहीं आया आज क्या? फ्रिज की तरफ बढ़ती दूध का पैकेट निकालते हुए वो बोली थीं। हयाम को पहली दफ़ा उन्होंने यहाँ देखा था। चौंकना तो बनता था। पता नहीं माँ, माँ। हयाम ने मुश्किल से ही सही लेकिन मुँह से ये लफ्ज़ निकाले ज़रूर थे। जबकि तानिया बेगम रुख मोड़ के उसे हैरत से देखने लगी थीं। उसके मामा कहने पे वो मज़ीद चौंक गई थीं। नाइस ऑफ यू, लेकिन आपको ख़याल आ गया कि यहाँ कोई माँ टाइप की चीज़ भी इस घर में रहती हैं। दूध 2 गिलास में डालते हुए वो नॉर्मल से अंदाज में बोली थी। क्या मतलब है आपका? वो नासमझी से बोली थी। मेरा मतलब साफ और सीधा है। अगर मैंने आपसे बात ना की तो आपने मुझसे भी बात करने की कोशिश ना की। मेरी नाराज़गी ज़ामिन से थी, आपसे नहीं। दूध के गिलास ट्रे में रखते हुए अब फ्लेवर उनमें डाल रही थी कि उन दूध का रंग ही बदल गया था।
ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی میں ہیزیٹیٹ ہو رہی تھی بس، اور ویسے بھی آپ سے ڈر بھی لگتا ہے مجھے۔ وہ کوکنگ رینج پہ ہاتھ جمائے ہوئے کھڑی تھی۔ بہرحال آپ ڈرا نہ کریں، ایزیلی جب دل چاہے کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور اب یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کک کو کال کرواتی ہوں اور وہ آ جائیں گے تو ناشتہ ریڈی کر لیں گے خود، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کے ذرا سا مسکرائی تھی۔ لیکن میں خود بنانا چاہتی ہوں آج، آپ کک کو منع کر دیں، وہ انکار کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ضامن، اور پھر آپ کے ڈیڈ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کام کر رہی ہیں، سو آپ نہ کرو۔ میں انہیں سمجھا دوں گی، وہ کچھ نہیں کہیں گے، آئی پرومس، وہ یقین سے بولی تھی۔ اچھا پھر میں یہ ملک دے کر آتی ہوں عدیل کو، پھر ہم دونوں مل کر بنائیں گے، وہ کہہ کر مڑ گئی تھی۔ حیام کو لگا تھا کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ بہرحال وہ جلدی جلدی ناشتے کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ بھرپور نیند لے کر وہ دیر سے اٹھا تھا، آنکھیں کھول کر وہ بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھ رہا تھا جہاں کا حصہ خالی تھا۔ او مین سرپرائز، دیر سے سو کر بھی جلدی اٹھ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا، بے اختیاری میں اس نے حیام کا تکیہ اٹھایا تھا اور اس پر ایک کس کی تھی، ساتھ میں اس کی بسی ہوئی خوشبو خود میں اتارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہ صحیح، اس کا تکیہ ہی صحیح۔ کمبل ہٹاتا وہ کپڑے لے کر باتھ روم چلا گیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کر نکلا تھا اور اب شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس وقت اس نے بلیو جینز پہ وائٹ پلین شرٹ پہن رکھی تھی، دراز سے نکال کر گھڑی کلائی میں باندھی تھی، اور خود پہ اچھا خاصا پرفیوم چھڑکا تھا۔ ابھی وہ تیار ہی ہو رہا تھا جب فون بیپ ہوا تھا۔ پرفیوم کی بوتل وہ ڈریسنگ پہ واپس رکھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آیا تھا جہاں اس کا اور حیام کا فون ساتھ ہی رکھے تھے۔ اپنا موبائل چیک کرنے کے بعد اس نے حیام کا موبائل ہاتھ میں لیا تھا۔ ویسے وہ کبھی اس کا موبائل ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن اچانک ہی اس نے کھول لیا تھا، اور یہ وجہ موبائل کا بجنا تھا۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس سے پہلے واٹس ایپ آن کیا تھا جس میں وجیہہ کا کوئی میسج تھا۔ واٹس ایپ بند کر کے اسے فیس بک کھولی تھی کیونکہ اس کی ہی نوٹیفیکیشن اسکرین پہ شو تھی۔ نہ جانے کون ٹیگ کرتا رہتا ہے تمہیں۔ وہ اب بیڈ پہ بیٹھ کر باقاعدہ چیک کرنے لگا تھا، لیکن ہوش میں تو تب آیا تھا جب میسنجر کی رنگ ٹون ہوئی تھی۔ اسکرین کی ٹاپ پہ نوٹیفیکیشن میں وہ بھیجے جانے والے کا نام پڑ چکا تھا۔ ماریا کا نام پڑھ کے وہ چونک سا گیا تھا۔ اس کا دھیان اس طرف گیا تھا کہ حیام اس سے رابطے میں ہے۔ پہلی فرصت میں سب چھوڑ کر اس نے میسنجر آن کیا تھا، ماریا کی چیٹ کھولی تھی، مارننگ کا میسج سین کیا تھا، جبکہ ماریا کی بھیجی ہوئی پک پہ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ اوہ سو مل گیا تمہیں تمہارا برہان، وہ پک کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ چیٹ بیک کر کے اس نے اور نیچے دیکھا تھا، اور سیکنڈ نمبر کی چیٹ دیکھ کے وہ ایک دم کھڑے سے اٹھ گیا تھا۔ واٹ دا ہیل، وہ غصے سے چلایا تھا۔ جیسے جیسے وہ چیٹ اوپر کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ حیام، وہ ایک دم تیزی سے بنا اپنے غصے سے قابو کیے چلایا تھا۔ حیام جو کچن میں کام کر رہی تھی اس کی آواز سن کے بالکل نہ اچھلی تھی کیونکہ اتنی نیچے آواز بالکل نارمل سی آئی تھی۔ وہ کام چھوڑ کر اوپر کی طرف ہی آئی تھی، ناشتہ ویسے بھی ریڈی کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ کمرے کا دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ ابھی وہ ضامن کا موڈ بالکل جج نہ کر چکی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے اس گھٹیا شخص سے باتیں کر سکتی ہو، اور وہ بھی اتنی چیپ باتیں؟ وہ موبائل اس کے سامنے کرتا درست لہجے میں چلایا تھا۔ حیام نے اپنا موبائل اس کے پاس دیکھا تھا اور اب چیٹ دیکھ کے اس کے پیروں سے زمین سے نکل گئی تھی۔ وہ بے یقین نظروں سے ضامن کی طرف دیکھنے لگی تھی اور سر نفے میں ہلایا تھا۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا حیام، بتاؤ کیا سچ ہے؟ وہ ذرا دیر میں ہی پوری چیٹ پلس آئی ڈی کو سرچ کر چکا تھا اور اب دیکھ کے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ ہکلائی تھی، منہ میں جیسے سارے الفاظ رہ گئے تھے اور باہر آنے سے انکاری تھے۔ واٹ ربش، اب تم مجھے دھوکہ دو گی، مجھے چیٹ کرو گی، ہماری پرسنلز اب سب کو بتاؤ گی جا کر؟ تم جانتی بھی ہو کہ کیا کرتی رہی ہو تم؟ اس کے ریشمی بال مٹھی میں لے کر وہ آنکھیں نکال کے چلایا تھا۔ ضامن، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے اس قدر سفاکی لہجے میں پہ آنسو نکل آئے تھے، اور اب ضامن نے جس سختی سے اس کے بال پکڑے تھے اسے برداشت نہ ہوا تھا۔ میرے صبر کا امتحان نہ لو حیام، اس کو بے دردی سے چھوڑتا وہ بولا تھا۔ حیام اپنا بیلنس قابو نہ کر پائی تھی، اس قدر جھٹکے سے بیڈ پہ وہ الٹی گر چکی تھی۔ یہ میری نہیں ہے، بلیو می۔ وہ سرعت سے بیڈ سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی تھی، اسے جیسے محسوس ہوا تھا کہ اس سے سب کچھ اس وقت چھینا جا رہا تھا۔ تمہارا یوزر نیم ہے یہ، مجھ سے جھوٹ نہیں کہو، اور جو سب تم نے باتیں کی ہیں اس گھٹیا نیچ شخص سے، وہ سب تمہارے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تمہارے علاوہ اسے کون بتا سکتا ہے ہمارے بارے میں؟ وہ واپس اسے بیڈ پہ دھکا دیتا بولا تھا اور اس کا موبائل اس کے پاس بیڈ پہ ہی پھینکا تھا۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، پلیز ایسا کچھ نہیں کیا۔
वो ऐसा कुछ नहीं किया। वो चीखती हुई, रोती हुई बोली थी, लेकिन ज़ामिन को कुछ फ़र्क ना पड़ा था। ना जाने इन कुछ मिनटों में ऐसा क्या हुआ था कि उसकी अकल काम करना बंद हो गई थी। मैं तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। वो थक-हार के बेड पे बैठा था और सर नीचे झुका लिया था। चेहरा उसका सुर्ख़ बेपनाह सुर्ख़ हो रहा था, जबकि चेहरे के तासुरात काफ़ी हद तक ख़तरनाक बिगड़े हुए थे। ज़ामिन, आई लव यू, रियली। वो उठी थी, मज़ीद उससे आगे कहती, लेकिन ज़ामिन की सुर्ख़ आँखों ने उसे बोलने से मना कर दिया था। वो एकदम सहम सी गई थी, धड़कनें मुंतशिर हुई थीं। मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए ऐसे मत देखें मुझे। अब वो उसके सामने घुटनों के बल बैठी ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी? सबसे छुपा के तुम्हें अपने पास रखा, कि कोई भी अपनी गलत निगाह से तुम्हें ना देख सके, लेकिन तुमने तो मुझे ही मेरी नज़रों से गिरा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसको धक्का देता वो उठा था और अपना बैग उठाया था। ज़ ज़ामिन ज़ाम आ आ आपको बताना चाहती थी सब। ज़मीन से वो उठती, माथा सहलाती, अटक-अटक के बोली थी, लेकिन वो तो कमरे में से ही निकलता चला गया था। रवानी से आँसू उसके चेहरे पे फैलते जा रहे थे। क्या एक तरफ फिर उसकी ज़िंदगी इसी मोड़ पे आ गई थी? क्या एक बार फिर वो उजड़ गई थी? क्या एक बार फिर उसने खुद को बर्बाद कर लिया था? कितनी खूबसूरत रात थी कल की, और उसके बरक्स इतना ही बदसूरत दिन। वो किलस के रह गई थी, घुटनों के बीच सर दिए वो रोती चली गई थी। ये भी ख़्याल ना रहा था कि उसके पीछे चली जाती, लेकिन कहीं न कहीं यकीन था कि इस तरह तो छोड़ के ना जाएगा वो उसे। बैग लेकर वो सीधा डाइनिंग एरिया में आ गया था। मॉम, डैड, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ टेबल पे आया तो सब वहाँ वहाँ ही मौजूद थे। डैड की तरफ झुकता वो बोला था, नाश्ता तो कर लो बेटा, इतनी जल्दी क्या है? तानिया बेगम आगे बढ़ के बोली थी। करता ज़रूर, लेकिन अब इसकी कमी पूरी हो गई है। फ्लाइट लेट हो रही है बहुत ज़्यादा, वक़्त नहीं। वो ठहर-ठहर के बोला था। हयाम ने सुबह जाके तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। इस तरह जाओगे बिना किए तो उसे बुरा लगेगा। तानिया बेगम को बिल्कुल अच्छा न लग रहा था कि वो इस तरह जा रहा है। कब से हयाम को वो मेहनत करता देख रही थी। अरे यार, इतनी जल्दी क्या है? ज़रा देर बैठो। और तुम्हारी बीवी कहाँ है? वजीहा उसकी कुर्सी की तरफ इशारा करती हुई बोली थी। वो इमोशनल हो जाती है, उसे डिस्टर्ब ना करना तुम, भले रात में बात कर लेना, अभी उसे डिस्टर्ब ना करना, वो अपसेट है मेरे जाने की वजह से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ज़ामिन उसे साफ लफ्ज़ों में तंबीह करता हुआ बोला था। अपनी तरफ से कमाल का बहाना वो बना गया था। ओके, ओके, ऑफ़िस से आकर ही मिलूँगी। वो सर इस बात में हिलाती बोली थी। जल्दी आना आपकी बार, ओके, ख़याल करना। अदील हमदानी अपनी कुर्सी से उठकर उसे गले लगाते बोले थे। जी डैड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, वो बमुश्किल मुस्कुरा के बोला था। ओके मॉम, सी यू सून, उनका माथा चूम के बोला था और अपना बैग उठा के वहां से निकल गया था। बैरूनी गेट पे पहुंच के उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। मुड़ के उसने पीछे देखा था, वो नहीं आई थी। बैग नीचे रख के वो अंदर की तरफ भागा था। उसके कदम वापस रूम की तरफ थे, उसे लगा था कि कीमती चीज छोड़ के जा रहा हो। जब वो कमरे में आया तो घुटनों के बल जमीन पे बैठी वो कारपेट को तक रही थी, लेकिन चेहरे पे एक तारीकी सी वाक़ई थी, जो कुछ देर पहले की थी। वो धीरे से चलता हुआ उसके पास खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही हयाम ने उसके ब्लैक और सिल्वर धारीदार वाले जॉगर्स को देखा, अपने करीब देखा था और झटके से उठ खड़ी हुई थी। धोखा दिया है आपने, इल्ज़ामात लगाए हैं मुझ पे। 2 कौड़ी का करके रख दिया है तुमने मुझे, बहुत घटिया इंसान हो तुम। अपने मकसद के लिए सिर्फ़ मुझे खुद से करीब किया, मोहब्बत के झूठे दावे करते जा रहे थे। एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरी बार नहीं, तीसरी बार मेरा दिल टूटेगा, तो मुझ पे क्या असर पड़ेगा। हिज़यानी अंदाज़ में उसके मुकाबिल खड़ी वो उसकी शर्ट का कॉलर पकड़े, रोते हुए सुर्ख़ आँखों समेत शिद्दत दर्द से चिल्लाई थी। ज़ामिन दम बख़ुद रह गया था, पहली दफ़ा वो उसके रद्द-ए-अमल से डरा था। जस्ट शट अप, वो मुझे मौका ना दो कि मैं हद क्रॉस करूँ अपनी, या तुम्हें और लोगों की तरह तुम पे हाथ उठाऊँ। कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए हैं तुम पे, 2 कौड़ी का नहीं किया है। ज़मीन से आसमान पे बिठाना चाहा है हमेशा। कौन-सा मकसद? कैसा मकसद? क्यों शादी करूँगा? तुमने कौन से मेरे मिशंस तक पहुँचाना है मुझे? इस ज़रा-सी देर में पागल करके रख दिया है तुमने। उसके हाथ अपने कॉलर से हटाता, वो गुस्से से लेकिन दबी-दबी आवाज़ में बोला था। हयाम हैरत से फटी-फटी आँखों से उसे देख रही थी। एंड लास्ट थिंग, अपने दिल को इतना नाजुक या खुद को इतना कमज़ोर ना बनाओ कि हर कोई तुम्हारा दिल तोड़ के जा सके। यूनिवर्सिटी रेगुलर जाती रहना, बाय। उसे बेड पे बिठाता वो वहाँ से चला गया था। रुको, वो तेज़ी से उसके पीछे भागी थी, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया, वो पागल सी हो रही थी। बेडरूम से निकलकर उसके कदम जैसे जम से गए थे, समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। इतना जज़्बाती तो नहीं था।
یہ मैं क्या कर रहा हूँ? सीढ़ियों पे खड़ा वो मुस्तकिल सोच रहा था। मनफी ख़यालात से हट के वो सोचना चाहता था। ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ मैं? नहीं, बुरहान नहीं हूँ मैं, ज़ामिन हूँ। ख़याम का भरोसा, एतमाद, यकीन और बहुत कुछ। अब वो बैरूनी गेट की तरफ जाने के बजाय डाइनिंग एरिया की तरफ गया था। क्या हो गया? जाने का दिल नहीं कर रहा? अदील साहब उसको वापस नाश्ता की तरफ देख के बोले थे। उनके साथ-साथ वजीहा और तानिया बेगम भी साथ-साथ चौंकी थीं। मुझे लगता है मेरी बीवी ने पहली दफ़ा मेरे लिए नाश्ता बनाया है, मुझे खा के जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि इसकी खुशबू मुझे जाने से रोक रही है। वो एकदम बदल गया था, उसका मिज़ाज बदल गया था, चेहरे के तासुरात बदल गए थे, सख्ती की जगह नरमी आ गई थी। "सो स्वीट ऑफ यू" तानिया बेगम मुस्कुराई थी। "मेरे लिए भी कोई इतना स्वीट सा बंदा देख लें आप, कब तक मैं सिंगल अकेली जान खुद का ख़्याल रखूँगी।" वजीहा तफरीही ही सही लेकिन दिल से कह गई थी। ज़ामिन के लिए नाश्ता लेते हाथ थमे थे। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक अदद लड़का ढूँढने का मिशन पूरा करूँगा, ज़ामिन मुस्कुरा के बोला था। मतलब 4 महीने इंतज़ार करना होगा? वजीहा का मुँह हैरत से खुल गया था। एक्चुअली वो ट्रे में स्लाइस, जैम, बटर, एग, पराठा, ऑमलेट और जूस रखता गोया हुआ था और वहाँ से चला गया था। देख रही हैं आपका बेटा कितना रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे ही आप आंटी इशू बना रही थी। वजीहा तानिया बेगम को डिपट रही थी, वो इस्तेज़ाइया हँसी थी। रोने की वजह से उसका दिल इतना घबराया था कि वो बाथरूम की तरफ भागी थी। अभी भी उसे घुटन सी महसूस हुई थी। बेसन से वॉमिट करके हटी तो तौलिए से उसने अपना चेहरा साफ किया था। ऐसे ही उसकी नज़र शीशे में पड़ गई थी, जहाँ उसका चेहरा और आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। अपना चेहरा देख के उसके आंसू फिर जारी हो गए थे। इतनी लाचार सी कैफियत उसकी थी ना किसी से कह सकती थी, ना किसी से कुछ शेयर कर सकती थी। अकेले ही शायद घुटना था और इस घुटन के एहसास से वो यकीनन आधी खत्म हो जाती। शॉवर खोलकर वो उसके नीचे खड़ी हो गई थी, ठंडी दीवार से टेक लगाए, नीम गर्म पानी के नीचे मुँह पे हाथ रखे, वो खुद को सुकून पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, जब उसे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई थी। बाथरूम का दरवाज़ा खटक रहा था, हयाम का बिल्कुल दिल नहीं किया था कि कोई भी जवाब दे। दरवाज़ा खोलो हयाम। पिछले 3 मिनट तक वो बजाता रहा और कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो जो वो पुरसकून सा था, अब अच्छा-खासा परेशान हो गया था क्योंकि ना कोई जवाब आ रहा था। हयाम को उसकी आवाज़ पहचानने में सेकंड का हज़ारवाँ हिस्सा लगा था। एकदम वो सब छोड़कर गेट की तरफ बढ़ी थी लेकिन लॉक पे हाथ रखे वो जम सी गई थी। गर्दन नफ़े में हिली थी। नो हयाम, उसने खुद को मना किया था। छोड़ गया सो छोड़ गया। शदीद वो जज़्बाती हो रही थी। सब मर्द ऐसे ही होते हैं। वो मज़ीद अच्छी तरह लॉक चेक करके वापस शॉवर के नीचे खड़ी हो गई थी और अपने कानों पे दोनों हाथ रख लिए थे ताकि उसकी आवाज़ें समाअत तक ना पहुँच सकें। आखिरी बार वॉर्न कर रहा हूँ हयाम, दरवाज़ा खोलो। वो अब तेज़ आवाज़ में चिल्लाया था। उसे गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं खोल रही थी? कितनी देर से वो बजा रहा था, अब भी कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो वो कबर्ड से कीज़ निकाल लाया था और बाथरूम के लॉक की से दरवाज़ा खोला था और अंदर की तरफ बढ़ा था। उसे देख के ज़ामिन को शदीद झटका लगा था। वो किस तरह महज़ एक कॉटन की सूट में शॉवर के नीचे पानी में भीग रही थी कि उसका सारा सरापा भीग चुका था। कपड़े अलग गीले होने की वजह से जिस्म से चिपक गए थे। कानों पे हाथ रख के वो चेहरा झुकाए आंखें मीचे शायद रो रही थी। ज़ामिन ने पहले टैप बंद किया था और फिर आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींचा था कि वो किसी डाली की तरह उसके पास चली आई थी। उसकी नादानी पे वो रश्क कर गया था। हयाम की आंखें और जहन उसके लम्स और इस तरह झटके से बेदार हुए थे। नागवारी उसके पूरे वजूद में फैली थी। वो उसका हाथ पकड़ के कमरे में लाना चाहता था, जब हयाम ने मजबूती से अपने पाँव वहीं जमा लिए थे। आगे बढ़ने से वो भी उसके साथ इनकारी थी। चलो, ज़ामिन सख्ती से बोला था। हयाम का सर नफ़ी में हिला था। चेहरे पे सख्त चट्टानों की तरह तासुरात थे। सारी नरमी उसका डर जैसे उड़ सा गया था। लेकिन ज़ामिन ने कब सुननी थी। उसका बाजू सख्ती से पकड़कर ज़बरदस्ती बाहर लाया था और उसे सीने से लगाया था। सॉरी, रियली सॉरी। उसके गीले बालों पे होंठ रखता वो शर्मिंदगी से बोला था। बहुत जल्दी ही उसे एहसास सा हो गया था कि कितना गलत था। आई डोंट केयर व्हाट यू सेड। अपने नाजुक हाथ उसके सीने पे हाथ रख के उसे सख्ती से पीछे धकेला था। उससे अलग होकर वो दूर खड़ी हो गई थी। आई नो मैं गलत हूँ। मुझे सुनना चाहिए था तुम्हें। बट देखो मैं तुम्हें दुख दिए बिना कैसे जा सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। इतना शाउट किया तुम पर। वो आगे बढ़कर उसकी बिखरी हुई हालत देखकर खुद को कोसता दुख से बोला था। गलत आप नहीं, गलत मैं हूँ जो यकीन किया। वो तंजिया सी रोते रोते हंसी थी। वॉट नॉनसेंस यार, बात मत बढ़ाओ। देखो डियर, गुस्सा सबको आता है लेकिन गुस्से पे काबू करना हर किसी को नहीं आता।
और मैं गुस्से में अपनी ज़िंदगी का नुकसान नहीं कर सकता। यू आर माई लाइफ ना, माई लव, माई विश, माई स्माइल। वो फिर से उसके करीब जाकर मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। ना जाने क्यों तुम पे गुस्सा नहीं हो पाता, ऐसी क्या अट्रैक्शन है तुम्हारे पास? खिंचा चला आता हूँ। वो उसको समझा रहा था, लेकिन गलती तो वो कर चुका था। इतनी जल्दी वो दावा कैसे हो सकता था? क्या मैं इतनी लंबी तकरीर पे हँस सकती हूँ? मुझसे तो अब रोया भी नहीं जा रहा ज़ामिन, वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाई थी। आप बहुत कुछ कह के जा चुके हैं, बस आप जाएँ जाएँ यहाँ से। उसके सामने हाथ जोड़ती वो टूटे हुए लहजे में बोली थी। प्लीज़ नाश्ता करते हैं, आओ फिर मैं चला जाऊँगा। उसका हाथ थाम के वो ज़बरदस्ती बेड पे लाया था और उसे बिठाया था और नाश्ते की ट्रे अपने और उसके बीच रखी थी। मैंने इतनी मोहब्बत से, चाह से ये नाश्ता अपने हाथों से बनाया था, लेकिन आप ठुकरा के चले जाएँ। अब ये कु क्यों ठुकरा के चले गए? अब ये क्यों खाने की कोशिश कर रहे हैं? चुभती हुई नज़रें उसने पहले नाश्ते की तरफ की थी और फिर उस पर। फॉर गॉड्स सेक हयाम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं? मुझे जाना भी है, लेकिन तुम क्यों इस तरह कर रही हो? हो गई गलती, अब माफ़ करो, ख़त्म करो। वो परेशान हो गया था। अपनी नज़र में वो अब खुद को सही महसूस कर रहा था। व्हाट? मैं गलत कर रही हूँ? वो एकदम उछल के बेड से उठी थी। जब मैं इतनी सी थी, महज़ चंद सालों की, तब मुझे मेरे माँ-बाप छोड़ गए। तब तो मुझे सही से मीनिंग तक नहीं पता थे कि कौन होते हैं माँ-बाप। कितनी बार मेरा दिल टूटा है। जिनके माँ-बाप नहीं होते, पता है कौन होते हैं? हर कोई उन्हें अपने पैर के नीचे रौंद रहा होता है। रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई उसे तोड़ के जा रहा होता है। खुद को सँभालते-सँभालते बड़ी हुई, फिर बुरहान आया। कहने को बहुत मोहब्बत थी उसे मुझसे, लेकिन उसका एतबार डगमगा गया। उसको क्या ब्लेम करूँ? वो कौन-सा बचपन से था मेरे साथ। अब्रॉड से चंद साल पहले ही आया था। कुछ सालों में मोहब्बत तो हो सकती है, एतबार यकीन ना हुआ। उस दिन मेरा दूसरी बार दिल टूटा, जब वो महज़ मुझे सबके सामने रुसवा करके गया। मैंने या किसी ने आपको फ़ोर्स नहीं किया था कि आएँ और मुझसे शादी करें। खुद आपका फ़ैसला था जब वो छोड़ के गया। ज़िंदगी की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गईं। फिर आप आए और बुरहान तो क्या, आपने सारी हदें पार कर दी मेरे करीब आने के लिए और ख़ुद को मुझसे करीब करने के लिए। जाने-अनजाने में हो गई मोहब्बत आपसे। रिश्ता ही ऐसा होता है कि फीलिंग्स आ जाती हैं। लेकिन आपने सबका रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। बुरहान और आप में कोई फ़र्क नहीं। आपने बंद कमरे में मुझे ही मेरी नज़रों में गिरा दिया ज़ामिन। मेरी क्या गलती थी? यही कि सिर्फ़ बताया नहीं, क्यों बताती? कैसे बताती? आपने इतना यकीन दिलाया अपनी मोहब्बत का, तो इस ज़रा से बेमायनी चीज़ का क्यों बताती? चाह रही थी कि आईडी डीएक्टिवेट कर दूँ, लेकिन मुझे भरोसा था कि अगर कभी ज़ामिन पढ़ेंगे भी तो देख भी लेंगे तो उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बुरहान ने तो सिर्फ़ मुझसे प्यार किया था, आपने तो प्यार के साथ-साथ मुझे महसूस किया है। मेरे साथ एक कमरे में रहे हैं, दिन-रात साथ रहे, क्या इतना भी एतमाद नहीं आपको मुझ पे कि जो लड़की अपने शौहर की मौजूदगी से सहम जाती है, जिससे बात करने पे कतराती है, वो किस तरह किसी गुंडे टाइप लड़के से बात कर सकती है? कैसे उससे ताल्लुकात बढ़ा सकती है। आज आपने सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दी है, लेकिन अफ़सोस मेरे पास कोई है नहीं कि जिससे शिकवे कर सकूँ। वो रवानी से कहते-कहते रुक गई थी। मेरी आईडी क्या हर चीज़ मारिया के पास होती थी। आज की बात नहीं है, शुरू वक़्त से। उसने मेरी चीज़ें यूज़ की हैं। बात वही है कि मेरे पास कभी इतनी सपोर्ट थी ही नहीं कि उसे कुछ कह सकूँ। कभी मना कर सकूँ कि मारिया कि ये चीज़ मेरी है, मत किया करो तुम कुछ। बुरहान को उसने मुझसे छीना और अब आपको मुझसे छीनना चाहती है। आप ऐसा करें, ये वो भागते हुए बेड से मोबाइल उठाती हुई उसके पास आई थी और उसके हाथ में मोबाइल दिया था। इसे साथ लेकर जाएँ और खुद भी जाएँ। उसका हाथ पकड़ती वो बोली थी और उसे बाहर निकालना चाहती थी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मुझे तुम पर बहुत यकीन है, प्लीज़ ऐसे नहीं करो। तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ़ देता है हयाम। वो उसको ज़बरदस्ती अपने बाज़ुओं में लेता अफ़सुर्दगी से बोला था। आप नहीं जानते बहुत स्ट्रगल किया है हमेशा, मुझे सबने बहुत परेशान किया है, सबने तोड़ा है ज़ामिन, सिर्फ़ किसी ने जोड़ा नहीं। मुझे नहीं पता उस लड़के को मुझसे क्या था, लेकिन वो हर वक़्त मेरे करीब रहता था। जब तक मैं लाहौर में थी, जब से आपके साथ हूँ, मुझे कभी वो दोबारा नहीं दिखा। उसने बहुत टीज़ किया है, हमेशा कहता था, तुम्हें हर किसी से छीन लूँगा, बट नो हाउ। वो कैसे मेरी बारात के दिन पहुँचा था और किस तरह उसने सब फ़ेक चीज़ें बुरहान को दिखाई थीं। मुझे नहीं पता था कि वो तस्वीरें कैसे उसने बनाई और वो मारिया ने ही दी होंगी। उसने हमेशा मुझे डिग्रेड किया शुरू से लेकर अब तक। वो उसके सीने से लगे रोने के साथ-साथ बोल भी रही थी। मुझे सब पता है, तुम्हारे सामने उसको लेकर आऊँगा और मारिया को भी, दोनों दोनों तुम्हारे गुनहगार हैं। उसका चेहरा हाथों में थाम कर बोला था और उसके बहते आंसू साफ किए थे।
نو مور ٹیئرس، اس کے ماتھے پہ جھکتا وہ بول رہا تھا جب حیام نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا۔ میرے گنہگار آپ بھی ہیں، جائیں آپ یہاں سے، دور ہٹتی وہ اٹل لہجے میں بولی تھی جیسے اس کی کچھ سننا ہی نہ چاہتی ہو۔ یس بٹ پہلے ناشتہ تو کر لیں یار، مان رہا ہوں غلطی، اب جان لوگی میری۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناشتہ، وہ جنونی انداز میں ناشتے کی طرف بڑھی تھی اور پوری ٹرے پکڑ کے زمین کے حوالے کیا تھا۔ ہو گیا ناشتہ، اب جائیں، وہ ناشتہ گرا کے بولی تھی، اس کی ضد عروج پہ تھی۔ یہ کیا ہے حیام؟ اس کا لہجہ پہلی بار اٹکا تھا، وہ سچ میں اس کی کیفیت دیکھ کے گھبرا سا گیا تھا۔ آپ جائیں، بس بس جائیں جائیں، وہ ہاتھ جوڑتی اس کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ جائیں، روتے روتے اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا کہ کیا کر رہی ہے۔ جا رہا ہوں پلیز، بٹ ایسے تو نہیں کرو، وہ اس کے پاس ویسے ہی بیٹھا تھا۔ جاؤ ضامن، وہ مزید اسے قریب دیکھ کے بدک گئی تھی۔ اور واپس نہ آنا، وہ بھاگتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور خود کو بند کر لیا تھا۔ ضامن زبردستی کمرے سے گیا تھا۔ صبح بیدار وہ کھٹپٹ آوازوں کی وجہ سے ہوئی تھی، کمبل ہٹا کے وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن برہان کی آواز پہ واپس لیٹ گئی تھی۔ لیٹی رہو، وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو برہان؟ وہ اس کو پیکنگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسلام آباد۔ وہ بنا دیکھے بس کام میں ہی مصروف تھا۔ وائٹ ٹراؤزر اور بلیو ٹی شرٹ میں اس کی گوری رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ ماریا نے دل ہی دل میں اسے دیکھ کے مسکرائی تھی۔ کیوں؟ میٹنگ ہے، مختصر جواب دے رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر؟ تو ہر جگہ اب تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ تیوری چڑھا کے بولا تھا جیسے ماریا کی یہ بات اسے زہر لگی ہو۔ میرا مطلب ہے ہنی مون پلان کرو اسلام آباد میں، وہ مسکاتے ہوئے بولی تھی۔ کیا اور بھی مار ہونا چاہتی ہو میرے ہاتھوں تم؟ وہ کپڑے چھوڑ کر وہ اس کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ ماریا ایک دم چپ ہوئی تھی۔ ایسے ہی چپ رہا کرو، اچھی تو نہیں بہتر ضرور لگتی ہو۔ کپڑے چھوڑ کر وہ روم سے ہی نکل گیا تھا جیسے اس کا موڈ خراب ہو گیا ہو۔ ماریا چپ کی چپ ہی رہ گئی تھی۔ تم نے کیوں بند رکھا ہے مجھے یہاں؟ خود ناشتہ کرنے کے بعد جب دارم دروازہ کھول کے اندر آیا تو وہ لڑکی بولی تھی۔ ابھی اس نے ایک فلیٹ پہ قیام کیا ہوا تھا۔ ابھی ہمارے صاحب کو تو آنے دو ڈارلنگ، پھر یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھتا بولا تھا۔ موبائل نکال کے اسے زمین کو ایک ٹیکسٹ کیا تھا۔ کل سے تم نے بھوکا رکھا ہوا ہے یہاں، وہ گھبرائی گھبرائی سی بولی تھی۔ وہ آئیں گے تو خوراک بھی دیں گے، ڈونٹ وری، اتنی زیادہ خوراک دیں گے کہ 4 سے 5 دن تمہیں بھوک نہیں لگے گی۔ وہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولا تھا جبکہ اس لڑکی نے سہم کے اسے دیکھا تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے اس نے اپنی جیکٹ اتار لی تھی جو جگہ جگہ سے کچھ نم سی ہو گئی تھی۔ سیٹ کی پشت پہ سر ڈال کر کچھ دیر پہلے کے واقعے کو سوچنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، چہرے پہ ساری سرشاری غائب سی تھی۔ ہیلو، موبائل بجنے پہ اسے کال ریسیو کی۔ تو نے انکل آنٹی سے بات کر لی تھی؟ دارم سب چھوڑ کے اپنے مدعے پہ آیا تھا۔ بھول گیا، ہنوز آنکھیں بند کیے وہ بولا تھا۔ تیرا کوئی بھی کام ہوتا ہے میں سب کچھ چھوڑ کر کرتا ہوں، لیکن تجھ سے ذرا سا کنونس تک نہ ہوا۔ دارم کو برا لگا تھا۔ میں راستے میں ہوں دارم، بھول گیا، کال پہ بھی کنونس کر سکتا ہوں، یو ڈونٹ وری۔ ابھی وہ پریشان تھا۔ دارم کی فضول گوئی اسے مزید پریشان کر گئی تھی۔ اوکے پھر تو آ جا، ٹیک کیئر۔ حیام کو جب کمرے میں خاموشی محسوس ہوئی تو وہ باتھ روم سے باہر آئی تھی، دھیرے سے چلتے ہوئے کبرڈ کی طرف گئی تھی اور ایک سوٹ نکالا تھا۔ گیلے کپڑے چینج کرنے کے بعد اس نے اپنے نم بالوں کو سلجھایا تھا اور چہرے کو دیکھا تھا۔ آنکھیں سوج چکی تھیں جبکہ چہرہ کافی حد تک زرد اور سرخ ہو رہا تھا۔ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو یقیناً 10 سوال کرتا۔ ڈریسنگ سے کریم اٹھا کر اسے اچھی خاصی چہرے پہ لگائی تھی کہ اب چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ ہونٹوں پہ گلابی گلوس لگایا تھا، آنکھوں پہ پنک شیڈ لگایا تھا۔ کافی حد تک اس کا چہرہ سدھر چکا تھا اور گلو کرنے لگا تھا۔ بیڈ سے ریشم کا سفید دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا تھا اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شاید پہلی دفعہ اس نے اپنے چہرے پہ خود سے اس طرح کے لوازمات لگائے تھے۔ بھوک کی وجہ سے اس کی حالت ٹال مٹول ہو رہی تھی، تبھی اس نے نیچے جانے کا سوچا تھا۔ ڈائننگ ایریا کی طرف جا کر اس نے وہاں بیٹھے نفوس کو سلام کیا تھا۔ عدیل صاحب وہاں موجود نہیں تھے، وہ آفس جا چکے تھے، جبکہ وجیہہ کچھ دیر پہلے ہی باہر چلی گئی تھی۔ اب تانیہ بیگم ناشتہ کے برتن ملازمہ سے اٹھوا رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ایک کرسی کھسکا کے بیٹھ گئی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ تانیہ بیگم کچن سے نکلی تھی اور حیام کو ٹیبل پہ سر رکھے دیکھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ بھوک لگ رہی ہے، وہ بچوں سی معصومیت لیے بولی تھی۔ تانیہ بیگم نے اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا، وہ انہیں بیمار سے لگی تھی، کافی کمزور وہ ویسے ہی تھی۔ اس کا چہرہ تھامتی وہ غور سے دیکھنے لگی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اس کا چہرہ یخ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ٹھنڈک محسوس کر کے وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی تھی۔
सही है तबीयत, वो नॉर्मल लहजा लिए बोली थी। डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मुझे तो ठीक नहीं लग रही। अब वो उसके बराबर वाली कुर्सी पे बैठती बोली थी, मैं ठीक हूँ, बस सर्दी लग रही है। वो अपने से बहाना बना के बोली थी। तो स्वेटर या शॉल लेना, आप कितनी लापरवाही बरत रही हो। वो अपनी साड़ी पे पहली शॉल उतार कर उसके कंधों पर डाली थी। शॉल पहन के उसे गर्मी का एहसास हुआ था। इतने में मुलाजमा नाश्ता लेकर आ गई थी। अब रोजाना ये खाएंगी आप, वो भी हमारे साथ नाश्ता करेंगी, समझ रही हैं। उसकी प्लेट में एक तय वाला पराठा डाल के प्लस हाफ फ्राई एग जो आधे से ज़्यादा कच्चा था, उसके सामने रख के बोली थी। हयाम का दिल उबकाया था इस तरह का अंडा देख के उसकी जर्दी से येलोइश पानी निकल रहा था, जिसका मतलब वो कच्ची थी। मुंह पे हाथ रख के वो उठी थी और दूर हुई थी। उसका इतना भारी नाश्ता देख के शिद्दत से दिल घबराया था। हयाम क्या हुआ? वो एकदम उठ के उसके पास आई थी। मैं ये नहीं खाऊंगी। उबकाई की वजह से उसकी आंखों में नमी झलकी थी। वो घबराते हुए डर से बोली थी। उसे लगा था कि वो उसे जबरदस्ती खिला देंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है हयाम। ओके नहीं खाओ, कुछ और मंगवाती हूँ। उसका हाथ दोबारा पकड़ कर दोबारा कुर्सी पे लाई थी और जूस का गिलास उसे थमाया था जो वो पीने लगी थी। जैम पराठा खा लो फिर, या बटर लगा दूं। वो उसके सामने चीजें चुनती बोली थी। मेरा दिल घबरा रहा है मामा, मैं ये नहीं खाऊंगी ये चीजें, कुछ लाइट सा दे दे। वो साफ मना करती बोली थी और जूस पीने लगी थी। जूस ने उसको अच्छा खासा महसूस करवाया था। तानिया बेगम एक बार फिर उसके चेहरे के तासुरात को भौर दे तकती अब कुछ नया मंगवाने लगी थी। बुरहान को देखा आपने? मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चला गया है, जबकि मैं बीमार भी हूँ। शाम की चाय पे वो आरजू बेगम के साथ बैठी थी। रह रह कर उसे सुबह से बुरहान पे गुस्सा आ रहा था। वो कैसे उसे छोड़कर इस्लामाबाद चला गया? उसे काम था तभी गया है। वैसे भी तुम बीमार हो तभी तुम्हें लेकर नहीं गया। वहाँ के मौसम की वजह से तुम मजीद बीमार हो जाती। वो चाय का सिप लेती काफी तहम्मुल का मुजाहरा करती बोली थी, जबकि मारिया जल भुन के रह गई थी। क्या बात कर रही है? मतलब अगर वो छोड़ देता अपना एक ऑफिशियल टूर तो क्या हो जाता? उसे उन पर भी गुस्सा आया था। ये कैसे बात कर रही हो तुम मारिया? शोहर बजाय बाहर बजाय तुम उसके पहुंच जाने की दुआ करो, उल्टा तुम गुस्सा हो रही हो। वैसे भी ये तुम्हारे हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं? मारिया का रवैया देख के वो दंग सी रह गई थी। आपका भी तो बेटा है, आप उसे समझाती भी नहीं है, कितनी ज्यादती कर रहा है वो मेरे साथ। वो मजीद भड़क सी गई थी। अपनी नाकदरी पे गुस्सा आया था। वो महज तुम्हारे साथ ही नहीं अपने साथ भी ज्यादती कर रहा है। बेहतर यही है कि उसे भी वक्त दो और खुद को भी। वो बात खत्म करते करते हुए आजिजी से बोली थी। लाहौर पहुंचकर अब वो उस फ्लैट में था जिसमें दारिम ने क्याम किया हुआ था। बैग लाउंज में रखकर वो दारिम के साथ उस कमरे की तरफ आया था जिसमें वो लड़की कैद थी। दरवाजा खोल के वो अंदर दाखिल हुआ था और पाँव से उसने दरवाजा बंद किया था। कुर्सी एक हाथ से उठाई थी और उस लड़की के सामने रखी थी। टांग पे टांग चढ़ा के वो उसके सामने बैठा था, जबकि दारिम अब दीवार से लगकर खामोशी से खड़ा हो गया था। अपना काम वो कर चुका था। बाकी काम जामिन के सुपुर्द करके वो सुकून में था। खातिर तवाज़ुन ठीक से हो रही है ना तुम्हारी? वो पहले बड़े नॉर्मल से अंदाज में बोला था। वो लड़की काफ़ी बोल्ड थी, या वो काम ही ऐसे लोगों के लिए करती थी कि बोल्ड हो गई थी। लेकिन अपने सामने 2 लड़कों को देखकर काफ़ी कन्फ्यूज़न के साथ घबरा सी गई थी। ज़ुबान जैसे गूंग सी हो गई थी। मुझे क्यों रखा है यहाँ? वो नज़रअंदाज करके अपनी तरफ से काफ़ी हिम्मत जमा करके बोली थी। ज़ामिन ने कांटदार नज़रों से उसे देखा था। तुम्हारा बॉस कहाँ पाया जाता है? वो भी नज़रअंदाज करके दूसरा सवाल पूछ बैठा था। कौन? वो लड़की चौंकी थी। अभी मैं तुम्हें बताऊँ कौन? देखो लड़की, मेरे पास फ़िज़ूल वक़्त नहीं है कि घंटा तुम पे वेस्ट करूँ। जस्ट कम टू द पॉइंट। वो अब उस पे चिल्लाया था क्योंकि वैसे ही वो घर से परेशान होकर डायरेक्ट यहाँ आया था। अलग टेंशन उसके ज़हन से चिपक गई थी। हयाँ भी नाराज़ थी, उसका मूड वैसे ही बिगड़ चुका था। मुझे यहाँ क्यों रखा है? वो मिस्कीन नज़रों से देखती उस पे ही अटकी थी। दारिम, इसको गाड़ी में डालो, मुझे कराची के लिए निकलना है, वहाँ ही देख लूँगा। वो कुर्सी से उठता दारिम को हुक्म देता बोला था। मैं कराची नहीं जाऊँगी। वो जैसे होश में आई थी। अब मैं तुम्हारी इजाज़त लूँगा क्या? वो वापस मुड़कर उसके गोल्डन रेशम जैसे बाल अपने फौलादी हाथ में जकड़कर गुस्से से घूर रहा था कि वो डर से रोने लगी थी। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। वो हकलाई थी। मेरे भी हैं, अब मैं क्या करूँ? क्या तुम्हें माफ़ कर दूँ? वो अब उसका चेहरा अपने हाथों के शिकंजे में बेदर्दी से थाम के बोला था। दारिम अलर्ट हुआ था, जबकि वो लड़की दर्द से तड़प गई थी। मैंने क्या किया है? वो तड़पती हुई बोली थी। वो क्लब तुम्हारे बाप का था, जहाँ किसी की माँ और बीवी होते हुए भी तुमने ज़ना आम करके रखा हुआ था। एक थप्पड़ उसने उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पे जड़ा था कि उसकी आंखों के नीचे अंधेरा सा आ गया था। दारिम ने ज़ामिन के कंधे पे हाथ रखा था, क्योंकि अब उसको सँभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था।
भोंको, वो उस पे दहाड़ा था। उसका बीपी काफ़ी हद तक बढ़ गया था। गुस्से से उसकी आवाज़ भी ऊँची हो गई थी, जबकि चेहरे के ज़ाविये बिगड़ चुके थे। मेरे 2 बच्चे हैं, छोड़ो मुझे, वो रोते हुए मिन्नत करती बोली थी। उसने दारिम से मदद लेना चाही थी। ज़ामिन की तरफ देखने से भी उसने खुद को रोका था। तुम्हारी फिगर से तो कहीं नहीं लगता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। दारिम लब भींचकर हैरानगी से बोला था। वो कितनी स्मार्ट और गुड लुकिंग थी। अभी इस सिचुएशन में भी वो बाज़ ना आया था। शट अप दारिम, ये कैसी बेशर्मी है? ज़ामिन को गुस्से ने गुस्से से भरा था, जबकि वो लड़की सहम के भी अपनी तारीफ में मुस्कुरा ना सकी थी। तुम्हें रिहाई तो किसी सूरत नहीं मिलेगी, अलबत्ता तुम्हारे 2 बच्चे हों या 10 बच्चे हों। अभी तो यहाँ सुकून से हो, कुछ दिनों बाद तो कैद के अंदर होगी। आइंदा आने वाले दिनों के लिए गुड लक। जब ज़ामिन को लगा कि वो ये कुछ न बताएगी, तो वो चुप हो गया और आखिरी जुमले कहता वहाँ से निकल गया, जबकि दारिम ने ताज्जुब से उस लड़की को देखा था। बड़ी ढीठ हो तुम, उसे भी ख़ार आया था। किताबें बेड पे फैलाए वो न जाने क्या चेक कर रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और वजीहा का रूम में आई थी। उसके हाथ में एक तकिया था। बेड पे अपना तकिया रखते वो वहाँ उसके साथ बैठ गई थी। मैंने सोचा तुम्हें ज़ामिन की कमी महसूस होगी, बेड पे क्यों ना मैं आ जाऊँ, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? वो तकिया सेट करते हयाम से बोली थी। नहीं, यू मोस्ट वेलकम, वो बमुश्किल मुस्कुरा के बोली थी। मतलब अब ज़ामिन नहीं है तो तुम पढ़ोगी, वो उसकी कोर्स की किताबें देखती बोली थी। साइकोलॉजी की किताब उठा के उससे टाइटल पढ़ा था। अरे यार, ज़ामिन को क्या सूझा कि उसे तुम्हें साइकोलॉजी की किताबें थमा दी, मतलब तुम्हारी मर्ज़ी तो पूछ लेता। वो नखुवत से बोली थी। मुझे पसंद है ये सब्जेक्ट, उन्होंने मुझसे पूछ के यहाँ ऐड करवाया है। वो साफ गोई से झूठ बोल गई थी, जबकि ज़ामिन ने खुद से ही अपनी मर्ज़ी से ये सब करवाया था। फिर ठीक है, क्योंकि ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, जबकि तुमने मेडिकल से किया इंटरमीडिएट। वैसे भी काफ़ी काफ़ी स्कोप का सब्जेक्ट है। बहरहाल तुमने कौन सा जॉब करनी है? वो काफ़ी मालूमात रखती थी, तभी उसके इल्म में इज़ाफ़ा कर रही थी। जी, वो इतना ही कह सकी थी। क्या तुम कल यूनी जा रही हो? वजीहा ने एक और सवाल धरा था। हाँ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। इट्स ओके, पहले दिन ऐसा ही महसूस होता है। 3-4 दिन में सब नॉर्मल रूटीन जैसा हो जाएगा। मैं ड्रॉप कर दूंगी डिपार्टमेंट तक, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। वो उसका हाथ थाम के तसल्ली देते हुए बोली थी। प्रॉमिस? हयाम को इतना अच्छा महसूस हुआ था जब वजीहा बगैर बगैर कहे ही उसकी मुश्किल समझ गई थी। पक्का वाला प्रॉमिस, वो मुस्कुरा के बोली थी, तभी जाके हयाम को सुकून सा महसूस हुआ था। तकरीबन 6 घंटों से वो वक्फे-वक्फे से हयाम के मोबाइल पे कॉल कर रहा था, लेकिन रिंग के अलावा कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। अब तो वो कंडीशन आ गई थी कि वो कॉल कर के थक सा गया था। कराची की फ्लाइट लेकर वो यहाँ पहुँच गया था। लाहौर में बमुश्किल उसने 1 घंटे स्टे किया था और अब रात के 3:30 बज रहे थे। रात 9 बजे से वो हयाम को कॉल और मैसेजेस कर रहा था, बट नो रिप्लाई का टैग देख के वो परेशान सा हो गया था। कमरे में बेड पे लेटे उसे शिद्दत से हयाम की कमी महसूस हुई थी। दूसरी साइड खाली देखकर उसका दिल भरा सा गया था। चेहरे पे गम के तासुरात थे, जैसे अभी उसका ज़ब्त जवाब दे जाएगा। सुबह हयाम का रद्द-ए-अमल देख के उसे शदीद तकलीफ हुई थी और फिर किस बेदर्दी से उसने ज़ामिन को दूर किया था। ये सोच-सोच के उसका दिमाग माउफ हो रहा था। क्या उससे इतनी बड़ी गलती हो गई थी? वो सोच-सोच के आधा हो गया था। दिन में 2-2 फ्लाइट्स लेना और फिर भी थकन के बावजूद भी उसे तक ना आ रही थी। इस्लामाबाद आए हुए उसे 1 दिन हो गया था। आज उसकी मीटिंग थी। मीटिंग पे जाने के लिए वो तैयार हुआ था। क़याम उसका होटल में हुआ था। गाड़ी की चाबी, मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स लेकर वो रूम लॉक्ड करके बाहर आया था। पार्किंग में पहुंचकर उसने कार का दरवाज़ा खोला था और बैठा था। अभी वो ड्राइव ही कर रहा था जब उसका मोबाइल ज़ोर-शोर से बज उठा था। उसने बिना देखे इग्नोर किया था कि मारिया ही होगी। मारिया से भागते हुए तो वो यहाँ सुकून की तलाश में आया था। मोबाइल बजते-बजते बंद हो गया था। कुछ मिनट बाद फिर कॉल आने लगी थी। उसका ठंडा नरम मिजाज पल में गर्म हुआ था। मोबाइल डैशबोर्ड से उठा के यस का ऑप्शन दबाकर कान से लगाया था। व्हाट रबिश, वो दुरुस्त लहजे में बोला था। अभी से इतना गुस्सा? अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज़ गूंजी थी। वो समझा था मारिया है, लेकिन मर्दाना आवाज़ सुन के उसने फ़ोन कान से हटाया था तो अनजाना नंबर था। हु इज़ देयर? ड्राइविंग करते हुए वो अब आराम से बोला था। यार बुरहान भाई, भाई इसलिए कह रहा हूँ कि हम दोनों के दुख बराबर के हैं, वो मौका मिलने पे बोला था। कौन हो आप और मेरा नाम कैसे जानते हो? वो उलझा सा था। छोड़ दो कि मैं कौन हूँ, लेकिन देखो तुम मुझे और मैं तुम्हें अब अच्छे से समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए दुख सा महसूस कर रहा हूँ कि क्यों तुमसे तुम्हारी हयाम को छीना। बुरहान मर्दाना आवाज़ पे चौंका था। क्या बक रहे हो? अब तो वो तपा था, उसे हयाम के बारे में कैसे पता था? तुम्हारी बारात के दिन तुमसे तुम्हारा प्यार छीना, माफ़ करना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बाद हयाम मेरी भी नहीं रहेगी।
ना जाने कौन बेगैरत था कि हयाम को इस कदर बदनाम और बर्बाद करने के बाद भी उससे शादी कर बैठा। मैंने तो ऐसी चाल चली थी कि हयाम को कोई मुँह भी ना लगाता, लेकिन वो कौन नेक फरिश्ता था जिसे हमदर्दी थी कि मुझसे मेरी हयाम को ले गया। मैंने खुद को बहुत रोका कि तुम्हें कुछ ना बताऊँ, लेकिन अब नहीं रहा जा रहा मुझसे इस तरह। तुम तो बस गए, तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन मैं तो रह गया ना अधूरा। तुम्हारी बीवी एक नंबर की आवारा औरत है। लेकिन अब तो उसने मेरे साथ मिलकर ऐसी चाल हयाम के खिलाफ चली है कि हयाम जीते जी मर जाएगी, और तो और वो नेकी का फरिश्ता भी उसे खड़े-खड़े तलाक के 3 लफ्ज़ों से आशना करवा देगा। अच्छा, आखिरी बात, अपनी बीवी मारिया बुरहान को मेरी तरफ से सलाम देना और बताना कि सलमान ने सलामती भेजी है। अपने मतलब की बात कहकर वो कॉल काट चुका था, लेकिन बुरहान तो सुन के अपने होश गँवा बैठा था। उससे गाड़ी की रफ़्तार बढ़ी ही थी। उसका पूरा जिस्म कँप-कँपा सा गया था, दिमाग बंद हुआ था, चेहरा पसीने से नहाया था। स्टीयरिंग से हाथ हटे थे, ब्रेक पे से पाँव लूज़ हुआ था। होश में वो तब आया था जब सामने जाते ट्रक से उसकी नज़र टकराई थी। उसका बंद दिमाग इतनी जल्दी ना चल सका था। दोबारा उसने स्टीयरिंग थामी थी और गाड़ी को ब्रेक करना चाहा था, लेकिन उससे कुछ न हुआ था। बमुश्किल उसने गाड़ी को टर्न किया था, जिसके बायस गाड़ी रोड से जंगल की तरफ गई थी और एक बड़े दरख्त में जाके ठुकी थी। उसका सर स्टीयरिंग पे जाके लगा था। एक्सीडेंट इतना शदीद हुआ था कि कुछ लम्हों में ही उसका पहले से बंद दिमाग पूरा बंद हो गया था। चंद मिनटों में ही उसने अपना तवाज़ुन खो दिया था। डॉक्टर क्या ज़्यादा सीरियस कंडीशन है? इतना सीवियर एक तो एक्सीडेंट था, तो सीवियर एक्सीडेंट ना था। जैसे ही डॉक्टर रूम से बाहर आया था, वो डॉक्टर के पास आकर परेशानी से बोली थी। इन 2 घंटों में वो अच्छी खासी परेशान हो गई थी। वो हयाम को यूँ ही ड्रॉप करके ऑफ़िस की तरफ जा रही थी, जब रास्ते में एक्सीडेंट देखकर वो हॉस्पिटल चली आई थी। होश में आने में वक़्त लगेगा, सवेर ही एक्सीडेंट था। पेशेंट के दिमाग पे काफ़ी चोटें आई हैं, स्टिचेज़ लगा दिए गए हैं। वो कह के आगे बढ़ गए थे। जबकि वजीहा घड़ी में टाइम देखने लगी थी, जहाँ 2 बज रहे थे। डॉक्टर की बात सुनकर उसका मुँह खुला रह गया था, उसे ऑफ़िस भी पहुँचना था। वहीं बेंच पे बैठकर होश में आने का इंतज़ार करने लगी थी। शाम तक होश ना आया तो वो उठी थी और डॉक्टर के पास वापस गई थी। डॉक्टर को अपना कार्ड दिखा के साथ चंद हदायत करके अब वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। अगर पेशेंट को होश तो आ जाता है तो फिर भी आप उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे, मैं कल आकर मिलूँगी। कैसा गुज़रा मेरी बेटी का पहला दिन? वो पहली दफ़ा खुद से लाउंज में आई थी, जहाँ खाने के बाद अदील साहब और तानिया बेगम बैठे थे। अदील साहब उसके गिर्द बाज़ू किए अपने साथ लगाए बैठे थे, जबकि हयाम उनके शफ़क़त भरे अंदाज़, मोहब्बत भरे हल्के में मौजूद खुश थी, खुद में सुकून उतरता महसूस कर रही थी। अच्छा गुज़रा, वो मुख़्तसिर बोली थी। वहाँ लंच पे क्या खाया आपने? ये उनका दूसरा सवाल था। जूस लिया था, अब भी वो इतना ही बोली थी। मैंने आपको कहा था ना कि आप डाइट अच्छी लें, लंच भी तो दिया था आपको, वो भी नहीं खाया। तानिया बेगम ताज्जुब से उसे देखती रह गई थी। मुझसे नहीं खाया जाता इतना, वो नज़रें झुका के शर्मिंदगी से बोली थी। कुछ बदला है तो खाना तो पड़ेगा ना। अब देख लें, हम ऐसे तो बिजनेसमैन नहीं बने ना, हमने जी जान से डट के खाया है हर कुछ। वो उसको समझाते बोले थे। लेकिन डैड, अच्छा मैं कोशिश करूंगी। वो कुछ बोलने लगी थी तब, लेकिन फिर चुप हो गई थी। तभी अदील साहब का फ़ोन रिंग करने लगा था। जामिन की कॉल देखकर वो मुस्कुराए थे। हाँ, बरखुरदार पहुंच गए। वो हशाश बशाश लहजे में बोले थे, जबकि साथ बैठी हयाम का दिल सुकड़ के रह गया था। उसके जिक्र से उसका दिल लरस सा गया था, दिल भर आने लगा था। डैड, मैं कल ही पहुँच गया था। ख़ैर, मुझे इस बात करनी है बहुत ज़रूरी। प्लीज़ आप ही मदद कर सकते हैं। वो जल्दबाज़ी में बोला था। सुन रहा हूँ। दारिम को लाहौर में एक लड़की पसंद आ गई है और अब उस संडे आपको और मॉम को लाहौर आना है। उस लड़की के घर प्रपोज़ल लेके जाना है और निकाह की डेट फ़िक्स करनी है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? हर उल्टा काम मुझसे करवाते हो। वो तुर्खी तुर्की से बोले थे। डैड, हमारा रिश्ता तो आप ही लेकर जाएँगे ना? अगर नहीं आना तो बता दें। दारिम को बता देता हूँ, फिर आप सगे-पराये में फ़र्क कर रहे हैं। मेरे लिए भी तो इतना कुछ किया था। ज़ामिन ने ब्लैकमेल किया था। ओके, आ जाऊँगा। अब ऐसी बातें ना करो, तुम दोनों बराबर हो मेरे लिए। अच्छा डैड, वो लड़की है, आपकी दोस्त सामिया है। सारा काम दारिम खुद कर चुका है, बस आपने नेक काम करना है। व्हाट? ये तुमसे भी 2 हाथ आगे निकल रहा है। वो कुछ भी उल्टा-सीधा बोलने से एहतियात कर रहे थे, क्योंकि हयाम उनके साथ ही लगी बैठी थी, जबकि तानिया बेगम चाय लेने चली गई थी। डैड अच्छा बंदा है, खुश रहेगी लड़की। आप हयाम से मेरी बात करा दें डैड, उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है, प्लीज़। डैड ही उसकी मदद कर सकते थे। ओह! तो अब इसे याद सता रही है। वो हौले से मुस्कुराए थे। रात को नींद नहीं आती अकेले अब, कल भी नहीं सोया मैं डैड, वो अफ़सुर्दगी से बोला था। वैसे भी हयाम अपने फ़ोन से उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, यही एक रास्ता था। ओके यार, दे रहा हूँ फ़ोन, साथ ही है मेरे। वो हयाम की तरफ फ़ोन बढ़ा चुके थे।
ज़امن बात करना चाहता है आपसे। हयाम ने उनकी तरफ देखा तो वो बोले थे। हयाम ने उनके सामने बमुश्किल फ़ोन थामा था। अस्सलाम वालेकुम। डैड के सामने बैठी खुद पे ज़ब्त करते उसने सलाम किया था। दूसरी तरफ ज़ामिन के ज़हन को सुकून मिला था। उसकी आवाज़ में एक ऐसा सुकून था कि वो आँखें मूंद गया था, लब मुस्कुराए थे। तुम्हारी मोहब्बत में पिघल रहा हूँ, तुम्हारी नाराज़गी से तड़प रहा हूँ, तुम्हारा रोना मिस कर रहा हूँ, तुम्हारा लम्स महसूस कर रहा हूँ, क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हुई हो। वो आंखें बंद किए बोला था जैसे अभी वो उसके पास उसके नज़दीक बैठी हो। ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? डैड उसके नज़दीक बैठे थे तो वो नज़रअंदाज करके कुछ और ही बोली थी। कमरे में जाओ हयाम। दूसरी तरफ ज़ामिन उठ के बैठा था और हयाम को तहक्कुम भरे अंदाज में बोला था। इट्स फाइन, सबने खाना खा लिया है। वो मज़ीद उसको हल्कान करने की कोशिश में थी या उसके ज़ब्त आज़मा रही थी। जान प्लीज़ ऐसे नहीं करो। क्यों मासूम बीवी से तुम ज़ालिम बीवी बन रही हो? वो बिलाखिर अफ़सुर्दगी समेत बोला था। आपके सर में दर्द है, आप टैबलेट भी खा चुके हैं तो नींद पूरी करें, मैं सुबह बात करूँगी, ख़याल रखिएगा। वो बात को लंबा चौड़ा किए बिना ही बड़े मुहज़्ज़िब अंदाज़ से डैड की तरफ मुस्कुरा के देखने के बाद बोली थी। डैड ये लें। वो फ़ोन बंद करके उन्हें देते बोली थी। बात तो कर लेती, नहीं हो तभी उसकी तबीयत सही नहीं है। वो फ़ोन लेते बोले थे। डैड मैं अपने फ़ोन से कर लूँगी, अब रूम में जाकर आप भी आराम करें। सोफ़े से उठती वो गोया हुई थी। सुबह के 6 बजे के करीब उसकी आंखें वाह हुई थी। मुंदी हुई आंखों से उसे अपने आस-पास देखा था जहाँ कोई नहीं था। अभी खुद तो बेदार हो गया था लेकिन उसका दिमाग बेदार ना हुआ था। अभी वो कुछ महसूस ही करना चाहता था जब एकदम रूम का दरवाज़ा खुला था और वो अंदर आई थी। बुरहान की नज़र सामने दरवाजे पे पड़ी थी और फिर दरवाजे से अंदर दाखिल होती लड़की पे पड़ी थी। ब्लैक जीन्स पे ब्लैक टी-शर्ट पे वो ब्राउन शॉल एक कंधे पे लापरवाही से डाले अपने कंधों तक आते सुनहरे बालों की हाई पोनी टेल बनाए वो उसके सामने अब बेड के करीब खड़ी थी। कैसा फ़ील कर रहे हो आप? स्टूल पे बैठती उसके बिल्कुल सामने वो पूछने लगी थी। सॉरी? बुरहान को लगा शायद उसे सुनने में गलती हुई हो। हाय, आई एम सॉरी, मैंने अपना तारुफ तो कराया ही नहीं। मेरा नाम वजीहा है और कल आपका जब कार एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ही आपको हॉस्पिटल लाई थी। और अब जब आपको होश नहीं था तो मैं ही यहाँ थी। वो बिना किसी तकल्लुफ़ के बोली थी। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह चुका था। आप मुझे अपना एड्रेस बता दें, मैं आपकी फ़ैमिली को कॉल कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं खुद कर लूँगा। वो मज़ीद उसकी मदद नहीं ले सकता था। वेल, ओके। वो खड़ी हो गई थी। भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। वो दिल में सोच कर रह गई थी। आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दें, मैं मनी ट्रांसफ़र कर दूँगा। अगेन थैंक्स। वो उसको जाता देख के जल्दी से बोला था। नॉट अ बिग डील, टेक केयर। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजा के वो बोली थी और बिना उसकी तरफ नज़र डाले वो बाहर चली गई थी। मतलब क्या करते फिर रहे हैं आपके दोनों बेटे? हम माँ-बाप तो ऐसे ही सिर्फ़ पालने के लिए ही थे। जब से मैच्योरिटी की एज पे आए हैं तब से सारे फ़ैसले खुद करने लगे हैं। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से इस्तीफ़ा दे रही हूँ बस। नाश्ते की टेबल पे बैठी वो बिगड़ गई थीं। अदील साहब ने उन्हें दारिम के कारनामे बताए तब से वो गुस्से में थीं। हयाम बैग लेकर डाइनिंग टेबल पे आई थी। बैग एक कुर्सी पर रख के खुद तानिया बेगम के साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग। वो प्लेट लेती हुई बहस में दख़ल कर गई थी। मॉर्निंग। आज वजीहा तो जल्दी चली गई। आपके डैड ड्रॉप कर देंगे आपको। थोड़ी देर पहले वाला गुस्सा भूल के वो हयाम की तरफ मुतवज्जह हुई थी। अच्छा, वो नॉर्मली बोली थी। आप लाहौर चलेंगी हमारे साथ? अदील साहब तानिया बेगम के गुस्से को नज़रअंदाज करके उससे बोले थे। क्यों, खैरियत? वो मुतवज्जह हुई थी। आपकी दोस्त के घर। वो महज़ूद से हुए थे। क्यों? वो उलझन आमेज़ लहजे आँखों से उन्हें देखने लगी थी। आपकी दोस्त के घर रिश्ता लेके जाना है, उसके लिए आपके डैड इनवाइट कर रहे हैं आपको। तानिया बेगम उनसे पहले ही हयाम से बोली थी। रिश्ता? उसकी ज़ुबान हकलाई थी। दारिम को आपकी दोस्त बहुत पसंद है, इवन वो सब प्लान कर चुके हैं, बस अब हमें अपनी शक्ल दिखानी है सामिया के डैड को। वो जल के बोली थी। क्या कह रही हैं आप? वो उलझ के रह गई थी। बस आप ये बता दें कि चलेंगी कि नहीं? अदील साहब असल मुद्दे पे आए थे। डैड मुझे तो ऑफ नहीं मिलेगा, आप लोग ही मिलकर आ जाएँ। उसे शायद लगा था कि ज़ामिन भी उनके साथ वहाँ मौजूद होगा। सो वो बहाना बना के मना कर गई थी जबकि उसका सामना वो अभी बिल्कुल ना करना चाहती थी। बाय द वे कब जाएँगे आप लोग? कल सुबह निकलेंगे। तानिया बेगम कुर्सी से उठते हुए बोली थी। तुम्हारी मामा बहुत नाराज़ होती हैं। सारी ज़िंदगी उन्हें मनाते हुए गुज़ारी है लेकिन अब तो उन्हें ठीक हो जाना चाहिए। मेरे बेटों में भी ना जाने ये कर्स आए हैं कि नहीं। अदील साहब पहले मायूसी फिर चहक के बोले थे। उनकी आखिरी बात पे हयाम घबरा सी गई थी। मेरा मतलब है ज़ामिन तुम्हें ज़रूर मनाता तो होगा। आखिर आखिर मेरा बेटा है। वो फ़ख्र से बोले थे। डैड आपके बेटे के बेइंतहा नखरे हैं। वो ताज्जुब से अफ़सुर्दगी से बोली थी। इतना इत
ٹار میرا مطلب ہے تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے کہتے رکی تھی اور بات بدل گئی تھی۔ کیا واقعی؟ عدیل ہمدانی حیران سے ہوئے تھے۔ نہیں، میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ ناراض نظر سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اب بالکل بھی ٹار میرا مطلب ہے تنگ نہیں کرے گا، وہ اس کے انداز میں ہی بولے تھے جبکہ حیام ہنسنے لگی تھی۔ لاہور کے کلبز تو وہ لاکڈ کروا چکے تھے، جبکہ اس لڑکی کو ضامن نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس سے انفارمیشن لینا چاہتا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت اسے کچھ بتانے کے حق میں نہ تھی۔ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کر وہ اگلے دن صبح ہی کراچی کو چاندنے نکلا تھا، جبکہ دارم بھی اس کے ساتھ تھا۔ بیڈ پہ لیٹا مستقل وہ سلمان نامی لڑکے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک پورا دن اور ایک پوری رات اس نے ہاسپٹل میں گزاری تھی۔ اتنا سوچنا اس کے لیے اس وقت اس کے لیے ٹھیک نہ تھا۔ تکیے پہ سر رکھے وہ پھر بھی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے حیام کے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ اسے سب سے زیادہ اس چیز کا دکھ تھا۔ آنکھوں کے کنارے اس کے بھیگ چکے تھے اور تکیے میں جذب ہو چکے تھے، جبکہ ماریا کو سوچ کے اس کا ذہن بند ہونے لگا تھا۔ کتنی گھٹیا ہو تم! اگر وہ سب سچ ہوا تو میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا تمہیں فارغ کرنے میں۔ اس کا مزاج بہت بری طرح بدل چکا تھا۔ وہ جو اسے پہلے ہی بری لگتی تھی اب زیادہ زہر لگنے لگی تھی۔ بابا، کیا جلدی ہے آپ کو اتنی میری شادی کرنے کی؟ میں بتا رہی ہوں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ وہ جب رات کے کھانے پہ ٹیبل پہ آئی تو روحانسی انداز میں بولی تھی۔ کھانا کھا لو پہلے، وہ کھانا لگاتے ہوئے بولے تھے۔ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، بتا رہی ہوں آپ کو، وہ پھر بولی تھی۔ تمہیں کیا برا لگ رہا ہے اس میں؟ 20 سال کی ہو گئی ہونا، اس عمر تک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے۔ میں تم پہ کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے کہیں بھی کیسے بھی تو مجھ سے شیئر کرو، اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ اگر تم کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں ہی کچھ سوچوں گا، وہ تفصیلی انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے۔ اسے پہلے ہی وہ فری ہینڈ دے چکے تھے۔ بابا یار، مجھے کوئی کیسے پسند آ سکتا ہے؟ میری آئیڈیل تو آپ ہیں، جو آپ پسند کریں گے تو وہ میرے لیے آف کورس بیسٹ ہوگا، بٹ ابھی مجھے پڑھنے تو دیں۔ وہ رونے کو ہوئی تھی۔ پڑھائی ساری زندگی ہوتی رہتی ہے بیٹا، اب کل تم یونی نہیں جاؤ گی، اور جاؤ گی تو جلدی آؤ گی، 2 بجے تک آ جاؤں گی۔ اور کچھ بتا دیں کہ کیا اہتمام کروں گی ان کے لیے؟ وہ پلیٹ میں چاول نکالتی بولی تھی۔ میں باہر سے لے آؤں گا، تم پریشان مت ہونا بس۔ وہ اب اس کو نارمل انداز میں دیکھ کر مسکرا کے بولے تھے۔ مجبوراً سامیہ کو بھی مسکرانا پڑا تھا۔ اف یار، تو گاڑی کو سائڈ میں تو لگا۔ رات کے اس پہر وہ صبح سے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ کہاں؟ اب بھی کچھ رہ گیا ہے کیا ڈھونڈنے کو؟ زامن جھنجھلا کے رہ گیا تھا۔ یار وہاں کچھ ہے۔ وہ جیکٹ پچھلی سیٹ سے اٹھا کر جلدی سے باہر نکلا تھا۔ کچھ زیادہ ہی جلدی ہو گئی ہے اسے، ہر چیز میں اتنی جلدی۔ وہ چابی نکالتا اپنی جیکٹ تھامتا باہر نکلا تھا۔ باہر اتنی سردی تھی کہ اسے جیکٹ پہننی پڑی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ یار وہ لڑکی اتنی بے حیا ہے، مجھے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے گئی اور وہاں اللہ معاف کرے، دارم توبہ توبہ کرتے بولا تھا، جبکہ تو نے اس 2 بچوں کی اماں کے ساتھ خوب مزے کرے ہوں گے۔ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا تھا، کتنا بدل رہا تھا وہ۔ یار وہ جھوٹ بول رہی ہے صرف بچنے کے لیے، حالانکہ وہ 2 بچوں کی مما لگتی نہیں ہے، دارم پر سوچ انداز میں بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے سچ بولے گی؟ زامن کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بے وقوف ہے۔ بہاڑ میں جائے وہ لطف لیتے بولا تھا۔ اگلے دن عدیل صاحب اور تانیہ بیگم لاہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ یار ایک بات بتاؤ، وجیہہ اس کو لے کر کار پوش میں آئی تھی۔ بولو، حیام گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت وہ وجیہہ کے ساتھ یونی جا رہی تھی۔ اس دور میں اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو ہم کیا اسے ایک شکریہ پہ ہی چلتا کر دیں؟ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے وہ تعصب سے بولی تھی۔ نہیں، اسے ہمیں ڈنر پہ انوائٹ کرنا چاہیے۔ حیام ہنسی تھی۔ ہے نا، میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وجیہہ گاڑی سٹارٹ کرتی ذرا مطمئن سی ہو گئی تھی۔ ارے مذاق کر رہی ہوں میں، شکریہ کے علاوہ کیا آپ اسے گھر لے آئیں؟ اب مدد کی ہے تو ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ مدد کرو، وہ کافی ہلکے انداز میں بولی تھی، جبکہ وجیہہ کے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ سے ہٹے تھے اور اب وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ لگا کہ تم کتنی روڈ ہو۔ میں پھر مذاق کر رہی ہوں، اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو اس کے ساتھ بہت عاجزانہ طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ حیام اب ٹھیک سے بولی تھی۔ وجیہہ اسے اس طرح دیکھ رہی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی تھی۔ یار مطلب حد ہو گئی ہے، شکر تم نے بتا دیا، ورنہ پوری ڈرائیونگ کے وقت یہی سوچتی رہتی۔ وجیہہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتی ہوئی فری آف ٹینشن ہوئی تھی۔ ابراہیم صاحب کے بتائے ہوئے وقت تک وہ تیار بھی ہو گئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی جلدی جلدی وہ بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ویسے بھی اس کے بال کوئی اتنے خاص نہیں تھے کہ زیادہ وقت لگتا۔ پشت پہ سیدھے بال چھوڑ کر اب وہ چہرے کو میک اپ کی آرائشوں سے فیضیاب کرنے لگی تھی۔ بلیو چھوٹی سی کرتی میں سفید جینس پہنے وہ بلیک دوپٹہ گلے میں ڈالے تیار کھڑی تھی۔ خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھ کے وہ مطمئن ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں مسکرائی تھی۔ موبائل اٹھا کر وہ کچن کی طرف گئی تھی جہاں ابراہیم صاحب چیزیں مینیج کر رہے تھے۔ میں کر لوں گی یہ بابا، وہ ان سے ٹرے چھینتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔
तुम्हारी तैयारी बर्बाद होगी फिर। वो उसको देखकर मुस्कुराते हुए बोले थे। क्या लड़का भी आएगा बाबा? वो शर्माते हुए मजाक भरे लहजे में गोया हुई थी। नहीं, वो मुझसे मिल चुका है पहले ही। वैसे एक बात बताओ, कल तक तो काफी डिप्रेस थी, अब लड़के का पूछ रही हो? हाँ, कल रात में जाकर मैंने पूरी रात यूट्यूब पर शादी के फवायद चेक किए हैं, मूवीज देखी हैं। अब मैं जरा मोटिवेट हो गई हूँ। वो दुपट्टा गले में ठीक करते हुए अपने कारनामे बता रही थी। मतलब तुमने रात जाके गुजारी है? कितने सर्कल्स हो रहे हैं तभी? वो उसका चेहरा बगौर देखते हुए बोले थे। कंसीलर से छुप जाते हैं ये बड़े बड़े सर्कल्स, लेकिन आपको कहाँ ये ज़नाना चीज़ें पता होगी। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, अब बिल्कुल चुप। वो बिल्कुल कभी भी कम नहीं बोलती थी, जबकि उसके पास हर जवाब सवाल का जवाब मौजूद होता था। वो ज़बरदस्ती उसे चुप कराते थे। बाबा, एक बात बोलूं? वो जब्त करती मुस्कुराहट छुपाए बोली थी। मेरे बोलने पे चुप हो जाओगी क्या? वो नाराज नजरों से देखते बोले थे। अगर चुप रही तो आपके मेहमान बाहर खड़े खड़े थक जाएंगे। अगर आपको मैंने ये नहीं बताया कि डोरबेल की आवाज़ मुझे सुनाई दी है। वो इतराते हुए चिप्स का टुकड़ा मुंह में रखती बोली थी। चलो मेरे साथ फिर। वो उसका हाथ थामकर गेट की तरफ ले गए थे। अंकल आंटी आप? जब वो उन्हें पानी की गिलास सर्व कर चुकी तो सोफे पे बैठकर हैरानगी से उन्हें देखने लगी थी। वो दोनों तो प्री प्लान्ड आए थे, लेकिन सामिया के लिए एक सरप्राइज था। जी क्यों, आपको हम अच्छे नहीं लग रहे? साहब अपने बेटे की पसंद पे रश्क कर उठे थे। दोनों ने ही अपनी मर्जी की थी। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा मतलब है हयाम जामिन भाई नहीं आए? हयाम की स्टडीज का गैप हो जाता तभी वो नहीं आई, जबकि जामिन कराची में है। वो उसको तफसील बताने लगे थे। भाई साहब, आपने हयाम का तो पूछा ही होगा सामिया से। वो हमारे बेटे के साथ बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रही है, और अब हम अपने दूसरे बेटे के लिए आपकी बेटी को चूज किया है। इफ यू डोंट माइंड तो आप हाँ में जवाब दे दें। तानिया बेगम इब्राहिम साहब से बोली थी। एक नज़र अदील हमदानी ने उन्हें देखा था। घर पर तो बहुत रूड बन रही थी, और अब सबसे पहले खुद ही सब कुछ कह भी गई। मैंने तो हाँ कब की कर दी थी, बस आप दोनों से मिलना चाहता था ताकि तसल्ली हो जाए। इब्राहिम साहब उन्हें बातों बातों में हाँ भी कह चुके थे, जबकि सामिया उलझन आमेज नजरों से इन तीनों नफूस को देख रही थी। उनका दूसरा बेटा कौन था उसे नहीं पता था। वो किस दूसरे बेटे की बात कर रहे थे उसे समझ नहीं आ रहा था। हयाम के वलीमे पे तो ना था। उसे याद आया था, क्या वो दारिम की बात कर रहे हैं? उसकी रीढ़ की हड्डी में एकदम उसका सोच के सनसनी सी दौड़ गई थी। नहीं, वो तो जामिन भाई का दोस्त है, वो कहाँ उनका भाई है। एकदम उसने खुद को भी तसल्ली दी थी। सामिया, डिनर लगाओ बेटा। जी बाबा। वो उनके कहने पे उठ गई थी और वहां से चली गई थी। दारिम हमारा ऑफिशियली बेटा तो नहीं है, लेकिन दारिम मेरे भाई का एक ही बेटा है, और उसके पेरेंट्स बचपन से ही अब्रॉड में शिफ्ट थे, जबकि वो हमारे साथ ही रहता आया है बचपन से। जबकि अब्रॉड में ही उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो मजीद पाकिस्तान का होकर रह गया है, वरना वो अभी यूरोप में होता। जामिन और उसकी परवरिश हमने एक साथ बिल्कुल एक जैसी की है। प्लस पॉइंट ये कि वो और जामिन गहरे और बेहतरीन दोस्त हैं। बाकी तो दारिम ने सब बता ही दिया होगा, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल। अदील साहब उन्हें तफसील बता रहे थे। जी मैं उससे मिल लिया हूँ, लेकिन आप उसे साथ नहीं लाए? वो मोस्टली कराची में होता है, चूंकि उनकी ड्यूटी ही वहाँ है। अभी भी वो कराची में ही है। कोशिश है कि दोनों का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में ही हो जाए, या हम लोग ही कराची में शिफ्ट हो जाएं। वरना मेरे दोनों बेटे तो सफ़र में ही आधे हो जाएंगे, कभी कराची, कभी लाहौर, तो फिर कभी इस्लामाबाद। अदील साहब को अंदाज़ा था बाद में कितनी मुश्किल होने वाली है उन्हें। अच्छी बात है, वो बस इतना ही कह सके थे। भाई साहब, अब आप निकाह की डेट दे दें, क्योंकि हमारे यहाँ मंगनी जैसे फंक्शन नहीं होते। बाकी हम चाहते तो ऑफिशियली शादी की डेट देते, लेकिन अगर आप मुनासिब ना समझे तो निकाह ही सही। आपस का मशवरा करके उन्होंने 1 हफ्ते बाद की डेट फिक्स की थी। यार देखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुद को खुश देखना चाहती हो तो अपनी ज़ुबान को चलाना शुरू कर दो। दारिम सामिन के फ्लैट में आया था, और अब उस कमरे में मौजूद था जहाँ उस लड़की का क़याम था। क़याम क्या, उसे एक कुर्सी पे बिठा के बांध रखा था, जबकि उसके इर्द-गिर्द खाने की प्लेटें रखी थीं, जो कि खाने की ही थीं। प्लीज़ पानी पानी दे दो मुझे। वो उसको कमरे में देखता बोला था। सामिन के सामने तो वो उफ़ भी ना करती थी। आज वो 2 दिन बाद उसके पास आया था। पी लो पानी, वरना यूँ ही ऐसे ही बैठी रहो। वो जब उसे लगा कि ये बंदी किसी काम की नहीं है, तो वो झुंझला के रह गया था। तुम पहले वादा करो मुझे छोड़ दोगे। वो पानी पीती उम्मीद भरी आँखों से उसे देखती बोली थी। तुम्हारे काम ऐसे नहीं है कि तुम्हें छोड़ा जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए गुंजाइश निकल ही जाएगी। उसके सामने कुर्सी पे वो आ बैठा था। पूछो आप। वो पानी पीकर ज़रा-सी पुरसुकून हुई थी। बस अपने बॉस की रिहाइश बता दो। बहुत ख्वारी कर ली है।
وہ कब से उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो हाथ ही ना आया था, जबकि वो इधर-उधर शहरों में इसके बनाए हुए क्लब्स बंद करवा चुके थे, जहाँ ड्रग्स प्रोडक्शन बहुत आम थी। हमारा बॉस का कोई ठिकाना नहीं है, वो एक वक़्त में एक जगह नहीं मिलेगा, कभी इधर होगा, होगा तो अगले 2 घंटे बाद किसी और जगह। वो उस पे नज़रें गाड़ती हुई बोली थी। कुछ और, दारिम न जाने क्यों उस पे यकीन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसकी मायूस शक्ल देख के वो सर इस बात में हिला गया था। वो लाहौर में ही रहने लगा था। पहले तो वो लड़कियों से सेटिंग करके उन्हें अपने जाल में फँसा के दूसरे मुल्कों में ट्रांसफ़र कर देता था। लेकिन अब लाहौर में एक लड़की के पीछे वो ऐसे पड़ा तो पीछे नहीं हटा। पहले हम समझते थे कि वो इस लड़की को भी किसी मुल्क बेचना चाहता है, लेकिन शायद वो उसे पसंद आ गई थी, तभी वो लाहौर में था। अब हमें नहीं पता है कि कहाँ है। जबकि 2 हफ्तों से वो क्लब भी ना आया था, वरना हर तीसरे चौथे दिन वो चक्कर ज़रूर लगाता था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता, बाकी तो तुम्हें भी मालूम होगा ना कुछ तो उसके बारे में। वो चुप हो गई थी। तुम्हें पता है वो किस किस लड़की के पीछे था? हमारा बॉस हमें इतना पर्सनल नहीं करता था। इतना ही ठीक है, अब तुम दोबारा से आराम करो। वो उसका चेहरा थपथपा के उठ गया था। मुझे निकालो तो यहाँ से। वो जाने लगा तो ज़ोर से चीखी थी। नहीं, कौन-सी किस्म का हलवा लिया हुआ है तुमने मुझे? गाजर या हलवा? अ, सोहन का हलवा, मूली का हलवा या सूजी का हलवा? मुझे भी आता है थप्पड़ लगाना। मिस रेड लिपस्टिक जेब में हाथ डाल के वो रुका था। झूठे, वो चीखी थी। बहुत बड़ा झूठा हूँ मैं, कभी भरोसा नहीं करना। और वैसे भी तुमने बताया ही क्या है, ये सब तो मुझे पहले से मालूम था। अब वो तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बोला था और दरवाज़ा लॉक करके जा चुका था। बाबा ये सब क्या है? इतनी इतनी जल्दी? अदील हमदानी और तानिया बेगम जब से गए थे वो वहीं ड्राइंग रूम में डरी बैठी थी। निकाह की बात हुई है बस। इब्राहिम साहब ज़िद हो गए थे उसे मनाते-मनाते। हाँ, मैंने देखा है ना, कभी उससे बात की है, ना कुछ पता है, ना जाने किसके साथ मुझे बाँध रहे हैं। इतनी बोझ बन गई हूँ आप पे, तो बता दे मुझे सच। वो अब वो बाकायदा रोने लगी थी। तुम बोझ नहीं हो, लेकिन ये भी तो देखो ना, तुम्हारे पास मेरे अलावा कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कौन सँभालेगा? और सेकंड थिंग ये कि वे तुम्हें तुम्हारी दोस्त का साथ हमेशा मिल जाएगा। बाकी वो फैमिली इतनी बेस्ट है। और बेटा तुम एकदम मुझ पे बोझ कैसे बन गई हो? मैं तो कब से किसी अच्छे भले रिश्ते के इंतज़ार में था। अब मैं नाशुक्री कैसे करूँ? तुम बिल्कुल मिल लो, बातें कर लो, रिलैक्स रहो। उसको सीने से लगाते वो मोहब्बत भरे लहजे में कह रहे थे, जबकि वो चुप सी आंसू बहाए जा रही थी। मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप पे भरोसा है। अब वो उनसे हटकर दूर हो गई थी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। कोर्स की बुक्स लिए वो पाँव पे फैलाए बैठी थी। दिल नहीं करता आपको तंग करने का, लेकिन मुझे भी बहुत सताया है। हिसाब बराबर होगा। लेकिन नाराज़ हूँ मैं, ते दिल नहीं पिघल रहा मेरा। हाथ में उसकी किताब थी, लेकिन ज़हन और दिमाग ज़ामिन के पास था। पता नहीं कब आएँगे, अब तो मेरा दिल भी नहीं लगता। नामहसूस अंदाज़ तरीके में वो उसको याद कर रही थी। रात को, सुबह को, दिन को, शाम को, यहाँ तक कि हर लम्हे वो उसे याद करती रहती थी। रात को सोते हुए वो उसे सबसे ज़्यादा याद आता था, और अब भी यही था। ये खाली कमरा उसे खाने को दौड़ता था, और इतना बड़ा खाली बेड उसे रोने पे मजबूर करता था। कितनी बार वो लेटे-लेटे तड़प जाती थी। इसी सोच में उसने ज़ामिन की जगह पे हाथ फेरा था, उसके तकिए को उठाकर चूमा था और सीने से लगाया था। इसी स्नाह में उसने अपना मोबाइल उठाया था और व्हाट्सएप ऑन किया था। ज़ामिन के ढेर सारे मैसेजेस को इग्नोर करके उसने बड़ी मुश्किल से दिल के हाथों मजबूर होकर मैसेज टाइप किया था। आई वॉन्ट यू इन माई बेड। मैसेज टाइप करके उसने मोबाइल बंद किया था। सॉरी, ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए थी। फ़िलहाल आप अकेले ही बेड के को एन्जॉय करें। ज़ामिन जो बेड पे लेटा हुआ उसके बारे में ही सोच रहा था, मोबाइल के मैसेज टोन देखकर मुस्कुराया था। हाउ रूड, बेसाख्ता हयाम के मुँह से निकला था। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। बाय मिस्टेक मैसेज आपको सेंड हो गया। फ़ौरन उससे जवाब टाइप किया था। बाय मिस्टेक। किसको भेज रही थीं? ये मैसेज मेरे अलावा उसके जवाब पे ज़ामिन का लहज़ा तशवीशनाक हुआ था। आपसे मतलब मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं सो रही हूँ। हयाम को लगा था कि वो उस पे फिर से शक कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना था। तुम्हें डिस्टर्ब करने का हक सिर्फ़ मेरा है, तुम्हारे साथ बेड शेयर करने का हक सिर्फ़ मेरा है। अब तुम सो के तो दिखाओ। ज़ामिन के लहजे में हठधर्मी थी। सोऊँगी, क्या करेंगे? उसे ज़िज करने के लिए उसने ज़ामिन के जवाब के उलट मैसेज लिखा था। हाँ, आज सो जाओ, लेकिन जब तुम मेरे हाथ लगोगी, तो तुम आँख भी बंद करके दिखाना। रखो मोबाइल अब और ऑफ़लाइन हो जाओ। वो बुरा-सा मान गया था। नहीं हो रही ऑफ़लाइन, बात कर रही हूँ मैं। वो एक बार फिर उसने झूठ बोला था। किससे बात कर रही थी इतनी रात में? ज़ामिन ना चाहते हुए भी पॉसेसिव सा हुआ था। किसी से भी बात करूँ, आप चुप करके सो जाएँ।
हयाम को अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करना मुश्किल हो गई थी। ओके, लेकिन ये टाइम हस्बैंड को देते हैं, लेकिन चलो, जब तक मैं तुमसे दूर हूँ या तुम मुझसे दूर हो, दे दो किसी को भी टाइम। अब मैं किसी को भी अपना सारा बदला मैं एक रात में ही पूरा कर लूँगा। मेरा बच्चा, बीवी, जानिया, वो अब शरारती मुस्कुराहट से जाए लिख रहा था। वो समझ गया था कि वो सिर्फ़ उसको तंग कर रही है। मैं आपका बच्चा नहीं हूँ, मेरा नाम हयाम है। हयाम चिढ़ गई थी। उसके इस तरह के इल्काबात पे वो सुर्ख हो गई थी। जब तक मेरे बच्चे नहीं आ जाते तब तक तुम ही मेरा बच्चा हो। बाय द वे, तुमने कितनी देर लगा दी है मुझे गुड न्यूज़ सुनाने में। कब बनाओगी मुझे डैड? नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन ये सब अपनी जगह। बस जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब वो सारी हदें पार करना चाह रहा था। सो रही हूँ मैं, वैसे भी मैं नाराज़ हूँ आपसे, इसलिए ज़्यादा फ्री ना हो। हयाम उसकी बेशर्मी वाले टेक्स्ट पढ़ के हकीकतन बदमज़ा हुई थी। फ़ोन बंद करके उसे तकिए के नीचे रखा था। कितना बेशर्म आदमी है, तौबा! वो अपने दहकते गुलाबी गालों पे हाथ रखती हैरत से सोचने लगी थी। मामा, ये मैं कैसे पहनूंगी? मुझे तो इसे बांधना तक नहीं आता। हाय, ये कितना लंबा थान है, उफ! तानिया बेगम ने उसे अपने बेडरूम में बुलाया था। यूनी से आकर वो उनके रूम में ही बैठी थी जब जब तानिया बेगम ने उसके सामने साड़ी रखी थी और वो साड़ी को देखकर बिदक गई थी। तुम यही पहनोगी और ये मेरा हुक्म है। सुर्ख रंग की साड़ी उसके सामने फैलाते हुए वो तहक्कुमाना अंदाज में बोली थी। आप भी जबरदस्ती करती हैं और आपका बेटा भी। वो अब बाकायदा मुंह बनाकर बोली थी। उसके गुलाबी होंठ सुकड़ गए थे जबकि चेहरे पे उतार चढ़ाव आ गए थे। तानिया बेगम ने एक नज़र अब उस पे डाली थी तो वो मुस्कुराहट ज़ब्त करके उसकी मिन्नत समाजत सुनने लगी थी। मेरा बेटा कभी ज़बरदस्ती कर ही नहीं सकता। क्या पता बीवी के मामले में पॉसेसिव हो। वो अब उसके पास बैठती ही बेटे की हिमायत में बोली थी। हाँ, मुझसे कोई पूछे पूछे कितनी ज़बरदस्ती की है हर मामले में। वो सिर्फ सोच के रह गई थी। क्या सोचने लगी? अच्छा, अब ये आप ये पहन रही हैं, ओके, अगर नहीं आती तो सीख जाएँ, क्योंकि मैरिड लड़कियाँ इस ड्रेस में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं और फिर आपके पास तो वैसे ही गॉड गिफ्टेड ब्यूटी है, तभी तो मेरा बेटा पागल है। लेकिन मेरी हाइट इतनी सी है, वो फिर नया रोना लाई थी। हील्स किस लिए बनी हैं? उनके पास हर सवाल का जवाब था। मतलब मुझे ये लाज़िमन पहननी है? वो रोहानसी हुई थी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे बेटे की पसंद है। बिलाहिर वो असली बात मुँह पे ही ले आई थी। आई सी, हयाम उन्हें देखती रह गई थी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मामा, यहाँ छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से लो लेट हो गया हूँ, 1 वीक लग जाएगा। बेड पे आड़ा तिरछा लेटा फ़ोन कान से लगाए वो गोया हुआ था। व्हाट? तुम अब मेरे पूछने पर बता रहे हो? वीडियो कॉल पे आओ। आरज़ू बेगम सोफ़े पे बैठे से उसकी बात सुन के उठ चुकी थी। कितने दिन से वो वहाँ गायब था और अब उन्होंने खुद कॉल की तो उसकी बात पे वो भड़क गई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, आप उनको तसल्ली देना चाहता था। मारिया को ही कॉल कर लिया करो, यहाँ उसने मुझे परेशान किया हुआ है और वहाँ जाकर तुमने। वो सख्त खफा हुई थी। मारिया, मामा, उसको उसके घर भेज दें बस और किस्सा खत्म करें। उसका नाम सुन के बुरहान का हलक तक कड़वा हो गया था। क्या कह रहे हो तुम? उन्हें उसके रवैये से उलझन सी महसूस हुई थी। फिलहाल कुछ नहीं, मुझे 1 वीक लगेगा, फिर बात करते हैं। वो उन्हें फ़ोन कॉल के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था जबकि वो मारिया की शक्ल भी दोबारा ना देखना चाहता था। हयाम, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। रात को वो हयाम को फ़ोन करके बालकनी में बैठी थी जबकि ठंडी हवा के झोंके उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रहे थे। डरने की क्या बात है? सब पे ये वक़्त आता है और वैसे भी ये नेचुरली होता है। हयाम अपनी अकल से ज़्यादा समझदारी से बोली थी। वजीहा जबकि हयाम के साथ लेटी उसकी और सामिया की बातें भी सुन रही थी। तुम बेफ़िक्र रहो, हमारा भाई बहुत प्यारा, बहुत ख़्याल रखेगा और तुमसे दबकर भी रहेगा। जिस तरह तुम्हारी टोन है, वही डरेगा, तुम नहीं। आखिरी बात वजीहा मज़ाकिया लहजे में बोली थी। हयाम ने फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ था। तुम समझ नहीं रही हो वजीहा। सामिया परेशान थी। उसका बिल्कुल भी मूड मज़ाक का नहीं था। कल उसका निकाह था और आज रात उसको नींद तक ना आ रही थी। देखो सामिया, तुम आराम करो, फिर कल रात तुम्हें सोने को मिले ना मिले, अब मिल्क लेकर सो जाओ। जितना सोचोगी उतना ही चेहरे पे कशिश नहीं आएगी कल के दिन। हयाम बात को संभालते हुए बोली थी। इन लोगों की भी सुबह फ्लाइट थी, वो भी आराम करना चाहती थी। क्या मतलब? कल तो वो आराम से सोएगी। सामिया की रुखसती थोड़ी हो रही है, सिर्फ निकाह हो रहा है। वजीहा अब भी शरारत भरे अंदाज में बोली थी। तुम तो चुप रहा करो बेशरम। अब सामिया अच्छी खासी तप गई थी। इसलिए कह रही हूँ कि फ़ोन बंद करो, क्योंकि तुम दोनों नंद भावज बन रहे हो अभी से। हयाम नाराज़ सी हुई थी क्योंकि दोनों एक दूसरे की उलट थी। मैं सफ़ेद पहन रहा हूँ, तू भी सफ़ेद पहन रहा है। अब ये बता कि दूल्हे और दूल्हे के दोस्त में क्या फ़र्क रह जाएगा? रात के वक़्त शेरवानी बेड पे फैलाए दारिम ज़ामिन को बगौर देखता बोला था क्योंकि इन दोनों के ड्रेस एक जैसे हो गए थे।
کیونکہ میری بیوی لال پہنے گی اور کمبینیشن کو مکمل کرنے کے لیے مجھے سفید کا ساتھ دینا ہوگا۔ ضامن موبائل پہ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھتا بولا تھا، تو یار لال کے ساتھ بلیک کلر بھی اچھا لگتا ہے، تو نے تو میری چیٹنگ کر لی ہے۔ دارم خفا سا ہوا تھا۔ یار تیری شیروانی ہے، جبکہ میرا تو سادہ سا سفید شلوار قمیض کا سوٹ ہے، اب اس میں تجھے کیا ایک جیسا لگ رہا ہے؟ ضامن اس کی پریشانی دور کر رہا تھا۔ کلر تو ایک جیسا ہو گیا نا، دارم اب بھی اسی بات پہ بحث کر رہا تھا۔ تو کیا چاہ رہا ہے کہ میں تیرے نکاح میں شرکت نہ کروں؟ ضامن موبائل بیڈ پہ پھینکتا اب بھڑکا تھا۔ نہیں، اگر تو چاہ رہا ہے کہ میں نہ جاؤں تو بھونک دے، میں نہیں آؤں گا۔ وہ غصہ ہوا تھا۔ نکاح نہیں، پوری شادی۔ دارم نے اس کی بات کی تصحیح کی تھی۔ اوقات میں رہ تو، زیادہ پھیل مت، وہ بیچاری بچی ابھی مینٹلی راضی بھی نہیں ہوگی۔ ضامن تو اس کی بات سن کر بدک گیا تھا۔ تیری والی بھی مینٹلی راضی نہیں تھی، تو نے سب ایڈجسٹ کیا نا، میں تم سے زیادہ اچھا مینیج کر لوں گا۔ دارم بھرپور اعتمادیہ لہجے میں بولا تھا۔ یار ایسے بہت ہارش ہو جاتا ہے سب، تو ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ ضامن نے بارہا اسے سمجھایا تھا، لیکن دارم تو چپ تھا، لیکن اسے سن بالکل نہیں رہا تھا۔ مجھے پسند نہیں آئی ہے وہ، محبت سے آگے اب عشق کی حدوں کو چھو رہا ہے، لمحہ لمحہ گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ بیڈ پہ لیٹتا جس بات سے بھرے لہجے میں بولا تھا، جبکہ ضامن اسے تکتا رہ گیا تھا۔ کھڑکی سے آتی روشنی محسوس کر کے کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ رات کو سوتے سوتے دارم اور ضامن کو فجر ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی نماز پڑھ کر اپنے اپنے بیڈ روم میں سو گئے تھے، لیکن جیسے ہی اسے کروٹ بدلی تھی، اپنے پاس خوشبو سے مہکتے وجود کو پا کر جیسے وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ آنکھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ کیا وہ کوئی سپنا خواب دیکھ رہا تھا؟ اس نے سوچا تھا۔ حیام، برابر میں سوتی حیام کو اس نے آہستگی سے آواز دی تھی، لیکن وہ بے خبر اس کی طرف کروٹ کیے سو رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ ضامن کے سامنے تھا، جبکہ ہاتھ بیڈ پہ تھے، کمبل میں سوڑی سمٹی وہ مزے سے سو رہی تھی۔ ضامن نے وال کلاک پہ نظر ڈالی تھی، جہاں 12:30 بج رہے تھے، مطلب دوپہر ہو چکی تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ان کی صبح کی فلائٹ ہے، لیکن اتنی صبح وہ پہنچ جائیں گے اسے نہیں پتا تھا۔ یہ تو اس کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہ تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف کھسکا تھا، اسے ذرا قریب ہوا تھا اور اس کے چہرے پہ چھائے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مدد سے نرمی سے کان میں اڑسے تھے۔ مارننگ بیوی۔ اس کا گلابی گال اپنے ہونٹوں سے چومتا وہ جذبات سے بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے لمس پہ وہ ذرا سا کسمس آئی تھی اور کروٹ بدل گئی تھی۔ اب حیام کی پشت ضامن کی طرف تھی، پشت پہ بکھرے اس کے بال اس نے ہٹائے تھے اور اس کی گردن کی طرف جھکا تھا۔ کتنے دن کا قرب اور دوری تھی کہ وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا تھا۔ آج تو میں بھی چاہتا ہوں کہ تم سوتی رہو اور میں اپنا کام جاری رکھ سکوں۔ اب اس کے گلے پہ ہاتھ پھیرتا وہ سرگوشی کے انداز میں بولا تھا اور اس کے گلے میں پہنی نازک چین اتار کے تکیے کے نیچے رکھی تھی اور اس پہ جھکتا چلا گیا تھا۔ سفید شرارے اور چولی پہنے وہ شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ بیوٹیشن نے اس کے بالوں کا خوبصورت سا ہیئر اسٹائل بنا کے اس کی خوبصورت تیکھے نکوش کو ذرا سا پالش کیا تھا۔ لائٹ سے میک اپ کے ساتھ بھرپور بھاری جویلری زیب تن کیے وہ بالکل تیار تھی۔ سفید ہی دوپٹہ سر پہ ڈالے وہ کافی کلچرڈ برائڈل لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین اسے تیار کر کے جا چکی تھی۔ نکاح کا چھوٹا سا فنکشن ابراہیم صاحب نے گھر پہ ہی ارینج کیا تھا۔ آج تمہاری ماں ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔ ابراہیم صاحب اس کے سامنے بیٹھتے اس کا ہاتھ تھام کے بولے تھے۔ میری ماں اور میرے پاپا آپ ہی ہیں، آپ خوش ہیں وہی کافی ہے۔ ان کی ہاتھ کی پشت چومتی اور اپنی آنکھوں سے لگاتی وہ سکون سے بولی تھی، جیسے سکون اس کے بدن میں اتر گیا ہو۔ تم بہت اچھی بیٹی ہو۔ وہ کافی چونک گئے تھے، کیونکہ جتنا کام ری ایکشن اس نے دکھایا تھا اس سب کی ابراہیم صاحب کو اس سے امید نہ تھی۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں بابا، وہ ان کے برعکس انہیں ان کے جیسے ہی جواب دے رہی تھی، جبکہ ابراہیم صاحب محظوظ سے ہوتے جا رہے تھے۔ آج کے دن بھی کوئی آسودگی افسردگی ان کے چہرے پہ نہ تھی، وہ بہت پرسکون سے تھے۔ تم بہت تیز ہو سامیہ، اب وہ جان بوجھ کے بولے تھے، اور آپ بہت معصوم ہیں۔ بے اختیار اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ پھیلے تھے اور آنکھیں مسکرائی تھیں۔ انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ باتھ روم سے وہ فریش ہو کر نکلی تھی اور اب ساڑی ہاتھ میں لیے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ اسے اتنی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔